Hi, friends, Das, Shashank. So I'm waiting for more people to join. So we'll wait for another 2 more minutes. So जो भी join करता है perfect है. Otherwise we'll start our session. In the meantime, how are you? How things are going on at your end? Please let me know. क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है? Things. How are the things with you? So you can use the chat. You can also unmute yourself. Yeah. Hi, Bhavandar, Shashank here. May I speak? Yeah. Yeah. Okay. Okay. So, first of all, good evening to everyone. Good evening. So, work on my side is going fine, but the company environment is changing because Genpact has launched the 9+1 policy where they've extended one working hour, Okay. and also which means they're asking for productivity. So, Hmm. out of every 8, 9 people, they want one resource less because 1 hour into 8 people or 9 people, Hmm. they're making them work more. Hmm. So that plus bosses' behavior and lack of transparency, lack of communication, and all is creating a very insecure environment, and everybody is insecure, and that is what is going on. So yeah. Okay. Okay. So as you mentioned, na, this has happened in last 3 months. I had also observed, and few of my client has told me कि उनके साथ भी the same thing has happened. That for someone half an hour बढ़ा दिया गया है, extend कर दिया गया है. For someone Saturdays को if there are 4 Saturdays, they are having 2 Saturdays working as their holiday, and so this is happening now. So I think it's a new phenomena which HR people have adopted, and so it's not matlab, as you are mentioning for GE, other companies have also started doing this. Okay, and trust me, in next uh, 1 year's time, lot of things are going to change. A lot of shocks people are going to have in terms of many things because AI is coming. People are not prepared. There is a huge force which is coming. People are taking things casually. They are just कि चलो चल रहा है जब तक चलाओ. And come, but the issue is that people at the top are actually making plans. वो ऐसे plans हैं, those plans are very very dangerous plans for people who are at a mid and a lower level. So as you mentioned that these things are going to impact, and it is happening across. I will tell you, Shashank. Okay. Okay. So why I'm saying because same thing has happened. अभी morning में भी मेरा एक session था. He also said the same thing कि company ने ऐसा बोल दिया है. You have to work half an hour extra daily, and Saturday is cancelled. 2 Saturdays cancelled, and you have to keep this thing. These, मतलब you have to basically their unnecessary kind of reporting has been introduced into the system. Are you getting it? So yes. So is it high time we start thinking about our own venture? Because there's a lot, people are doing on AI, stock trading using AI, creating faceless channels. So many, ads are so many things are coming. So should we start thinking about doing something of our own? Because naturally there's no work life or life balance left if this gets worse. I will tell you that
यही करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज नाउ लेफ्ट, कि पैरेलली विद जॉब स्टार्ट वर्किंग ऑन न्यू थिंग्स, न्यू वेंचर्स, समथिंग ऑफ योर ओन। अदरवाइज बहुत चैलेंज आने वाला है। इनफैक्ट आई विल टेल यू, एक ना स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी आप लोगों को। वो स्ट्रेटेजी क्या है कि जस्ट स्टार्ट कनेक्टिंग विद 18, 19, 20, 21, 18 से लेकर 22 के जो यंग जनरेशन है ना, इनके साथ आप कनेक्ट करना शुरू कर दो। क्विकली आप Mm-hmm. इनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दो। बिकॉज दीज पीपल आज की डेट में जो पर्सन 12th पास है, कॉलेज कर रहा है, दे आर अर्निंग अ बिग अमाउंट, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, एंड यही होने वाला है आने वाले टाइम में। आर यू गेटिंग इट? सो ऑन्टरप्रेन्योरशिप माइंडसेट अब लाना ही पड़ेगा। अगर आप अब नहीं लाओगे तो इट विल बी टू लेट फॉर पीपल। एंड अभी क्या है ना, अभी लोगों को धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है। इसमें भी कंपटीशन हो जाएगा नेक्स्ट 1 ईयर्स टाइम। बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारा ले ऑफ हो चुका है, और ले ऑफ अभी Mm-hmm. होना है। एंड पीपल डोंट हैव, पीपल हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। आर यू गेटिंग इट? Right. तो वो करना ही पड़ेगा। एंड लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स आ गई हैं आजकल, इतनी चीजें आ गई हैं कि अगर आप एआई को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो। अब अल्टीमेटली जॉब क्या हो गया ना, देखो मैं आपको सिंपल सी बताऊं, अब अल्टीमेटली हो गया है, जो सीन चल रहा है दैट इज भाई पैसा कमा लो, और पैसा कमाने के बाद कहीं पे ऐसी जगह लगा दो कि आपको फिक्स रिटर्न आ रहा हो, मंथली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपीज आपके पास आना शुरू हो जाए। अब इसका हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा आप सबको। मतलब देखो, मैं तो इस जर्नी में काफी पहले से हूँ। सो मैं तो एक लेवल पे सेटल हो चुका हूं कि अगर मैं आज कुछ भी नहीं करता, मतलब पर्सनली आई एम सेइंग, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टुडे, अगर मैं आज बोलता हूँ मुझे कोई काम नहीं करना, स्टिल आई विल बी गेटिंग 1.5 लाख, 2 लाख रुपीज कहीं ना कहीं से आ जाएगा। बिकॉज कुछ ऐसे मैंने अपने जुगाड़ सेट कर लिए हैं इन लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स। पर अब आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपकी जो, जितना आपका मिनिमम लिविंग है उसका डबल का जुगाड़ कर लो। Right. मेरी मेरी लिविंग है 50,000, 60,000, 70,000 में मेरा घर आराम से चल जाता है। कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। 60, 70,000, अगर मैं बेसिक की बात करता हूँ। बहुत ज्यादा हो Mm-hmm. तो 1 लाख तक मेरे को मैं जाता हूँ, उसके ऊपर नहीं जाता। हाँ जी। Right, sir. Noted. हाँ, सो वो करना ही पड़ेगा, वो वही आपको लेके चलना पड़ेगा। अब ना एक अलग टाइम आ गया है, एंड वी हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ। और प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई ना, जो अभी जो मिडिल ग्रुप में जो लोग हैं ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी हो क्या रहा है। अभी दे आर जस्ट गोइंग कि चलो चल रहा है, बच्चे जा रहे हैं, अभी बच्चों को सेटल कर लें, अभी ये कर लें। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि बच्चे तो सेटल हो जाएंगे, आपको खुद को दोबारा से री इन्वेंट करके सेटल करना है। इफ यू आर एट 40s, तो आपको बस दोबारा से री इन्वेंट करके सेटल करना पड़ेगा अपने आप को, वो टाइम आ चुका है। सो दैट्स द थिंग। तो मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, प्रैक्टिकल सिचुएशन यही है। मतलब मेरे No, काफी it's, सारे क्लाइंट्स के साथ यही चल रहा है। हाँ, टेल मी। yeah, it is very much practical. When people from HR start to leave, that's a यस। big red flag, and which is what is happening. पीपल देखो, एवरीवेयर एआई हैज एंटर्ड, एंड स्पेशली देर आर फ्यू जॉब्स, जो ऑफिस की जॉब है ना, जितनी भी बैकएंड की जॉब है, रिसर्च की जॉब है, एनालिसिस की जॉब है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी करेंगी उस आदमी को जिस पर्सन ने, हु हैज नॉट लर्न द न्यू वे ऑफ वर्किंग। जिसने सीख लिया, जिसको समझ में आता है कैसे काम होता है, क्या होता है, कैसे चीजें क्विक निकालनी है, ही विल बी एबल टू सस्टेन और सेव हिज लाइफ एंड जॉब। जिसने नहीं सीखा, जो कूल है, रिलैक्स्ड है, चिल है, वो खर्चा नहीं करना चाहता, बैठा हुआ है अभी भी, दे आर इन अ डिफरेंट जोन, वहां पर चैलेंजेस आने वाले। ओके। Right, sir. सो दैट्स द थिंग। इनफैक्ट आज का जो सेशन है, मैंने सेशन जो बनाया हुआ है इसी के अराउंड में ही बनाया हुआ है। ठीक है ना, कि हाउ टू फेस द चैलेंजेस, हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स इन योर थिंग। आप लोगों में से कितने लोगों ने एंड्योरेंस जो शिप था और एक शेकलटन की स्टोरी सुनी है? शेकलटन जो शिप था, एक अंटार्कटिका में जाता है। आप में से किसी ने उसके बारे में, एनीबडी नोज अबाउट दैट? यस, अगर हाँ तो यस बोलना। नो? ओके, ठीक। तो मैं आपको आज एक बेसिकली, ये ना एक लीडरशिप में सिखाया जाता है, काफी एक लीडरशिप का बहुत बड़ा लेसन इसमें से दिए जाते हैं हार्वर्ड के अंदर। ठीक है। सो दिस इज अ स्टोरी विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आई विल बी शेयरिंग विद यू अ क्लिप ऑल्सो, और मैं उसके साथ आपको बताऊंगा भी कुछ चीजें, और फिर आप इसके ऊपर रिसर्च करना। हार्वर्ड और उसके अंदर इसके बारे में सिखाया जाता है। और
बहुत अलग लेवल की स्टोरी है। इससे आपको समझ में आएगा कि अब आपको अपनी लाइफ को कैसे जीना है। ये आज के कंटेक्स्ट की बहुत जबरदस्त एक स्टोरी है, जो आज हम थोड़ा सा समझेंगे इसके थ्रू, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। बेसिकली क्या है, एक एक्सप्लोरर होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा पहले यूट्यूब शेयर कर देता हूँ टू सेट दैट थिंग, शेयरिंग विद यू। इसके अंदर काफी सारे लेसन्स हैं, वो आपको मैं लेसन्स के बारे में भी आई विल बी शेयरिंग विद यू। या अब आप मेरे को बताना बस, वॉइस क्लियर है नहीं है क्या है। अब मैंने रन कर दी। One day in late 1914, what was intended as an important Antarctic expedition started to go 1914 में हुआ था ये। badly wrong. On this day began a 2-year nightmare of hardship, catastrophe, and ultimately heroism of the highest order. शेकलटन का हीरोइज्म, जो कहते हैं ना हीरो, और पूरी टीम की हीरोइज्म की बात हो रही है, उसके बारे में हम Ernest Shackleton, a brilliant and charismatic leader, took 27 men on a voyage that would challenge their spirit and their lives. This is the saga of one of the most remarkable survival stories of the century, the voyage of the Endurance. On this early December day in 1914, the ship Endurance is sailing easily through loose pack ice north of Antarctica. The expedition leader, Sir Ernest Shackleton, is an ambitious 40-year-old Anglo-Irishman. He is known for his way of drawing men to him and for his ability to get out of tight situations. देखो उसने क्या बोला, उसकी एबिलिटी थी टू गेट आउट ऑफ टाइट सिचुएशंस। यहीं पे सारी लर्निंग्स आएंगी, आप देखना कि ये एज अ लीडर इसने कैसे हैंडल करा चीजों को। और ये सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हैं, कि आप भी अपनी लाइफ के कैप्टन हो, आप लीडर हो, और ये कंपनी के अंदर भी है और आपके इंडिविजुअल के लिए भी है। इट्स अ गुड थिंग। The British expedition plans to sail through the Weddell Sea to the Antarctic. Their goal is to be the first to achieve an overland crossing of the continent. Ernest Shackleton was already a famed explorer. He was a rival of Sir Robert Scott's in the race to reach the South Pole. My father's relationships with Scott, it's rather difficult to describe it. You see, in a sense, my father was the adventurer who came in, who'd been one of Scott's people, and decided to run his own expedition. In 1907, Shackleton led his own team on a failed attempt to reach the pole. With him was Frank Wild, who would later join Shackleton on the Endurance. In 1912, Scott beat Shackleton to the pole, though Roald Amundsen had reached it first. Competitive and driven, Shackleton turned his sights instead to the journey over the largely unknown Antarctic. The impression I've got from all I've read about Shackleton and his expeditions is that things were rather thrown together at the last minute, usually short of cash, and the thing was just driven by his amazing energy and enthusiasm and ambition, and things did go wrong. And compared to, say, the Norwegian polar expeditions, Shackleton's were possibly a bit shambolic, but he got himself out of those situations. Life on the Endurance is a mix of disciplined routine and good times. More than 50 dogs are to act as sled teams for the overland crossing. Frank Wild is aboard as captain. Shackleton has an unshakable faith in his second in command. He was very dependent on Frank Wild. I would say Wild was a great man in his way. Frank Wild and he
I don't think had to finish sentences ever. A glance between them would have suggested what was necessary. ये मैं आपको बीच बीच में चलाऊंगा, पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। इसमें लीडरशिप की क्या चीजें हैं। जब ये एक एक्सपेडिशन करा गया तो इसके अंदर शेकल्टन जो था वो मेन कैप्टन था, उसको एक दिया गया, उसको नॉर्थ पोल पे जाना था। उसने बोला मैं पूरा अंटार्कटिका वॉक करके जाऊंगा, पर वो कर नहीं पाया। फिर उसने एक शिप की जर्नी स्टार्ट करी। उसके लिए जब लोगों को सेलेक्ट करा गया तो उन्होंने ऐसे लोगों को सेलेक्ट करा जिनको ये बोला गया कि वर्स्ट कंडीशन आपके साथ लाइफ में होने वाली हैं, पर आप अगर ये वर्स्ट कंडीशन में, मतलब एक पूरा न्यूज़पेपर ऐड दिया गया था और उसके अंदर क्लियरली बताया गया था कि एक एक्सपेडिशन जा रहा है, आपको शिप में जाना है जिसके अंदर मरने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, बचना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप बच जाओगे तो आपका बहुत नाम होगा। ये क्लियर बोला गया था। और आप अगर नहीं रहे तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा। इस तरह का एक ऐड डाला जाता है। ऐड डालने के बाद काफी लोग उधर आते हैं, उसमें से शेकल्टन कुछ लोगों को सेलेक्ट करता है जो उसके पैरामीटर से बाहर आते हैं। वो एक ऐसी टीम बनाता है, एक ऐसी बैलेंस टीम बनाता है, क्योंकि उस शिप के अंदर 28 ही लोग जा सकते थे, 28 से 30 लोग। तो वो सबसे पहला उसको काम दिया था टीम को बनाने का। तो वो एक ऐसी टीम बनाता है जो जिनके अंदर उतना एंड्योरेंस हो, जिनके अंदर उतनी पावर हो कि वो इस बर्फ को, तूफान को हैंडल कर पाए, इतने वो मेंटली टफ हों। तो वो एक पूरी प्रिपरेशन करता है, क्वेश्चंस पूछता है उन लोगों से। मतलब एज ए लीडर उसकी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम अपॉइंटिंग पीपल, वो 28 लोग जो उसको शिप में लेके जाने होते हैं। पहला सीन ये होता है, वो शिप में जो लोग आते हैं तो 28 लोग होते हैं, प्लस एक आदमी जो और होता है जिसको ये लेके नहीं जाता, बाद में वो शिप के अंदर छुप जाता है, बिकॉज उसको जाना होता है और ये सेलेक्ट नहीं करता। तो टोटल शिप के अंदर 29 लोग हो जाते हैं और कुछ डॉग्स को लेके ये अंटार्कटिका के लिए अंटार्कटिका की तरफ निकल पड़ते हैं अपने शिप के अंदर। जो शेकल्टन होता है उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कि उसने जो अपना सेकंड इन कमांड रखा होता है वो उसका सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है। ये लीडरशिप आपको समझना है। ये केस स्टडी सारी ना सीईओज को बताई जाती है कि बॉस, आपने आजकल देखा होगा ना, जो टीम जो चलती हैं, जो मैनेजमेंट जब चलता है, क्या कहते हैं ऐसे कि ग्रुप के ग्रुप चलते हैं, ग्रुप से ग्रुप के ग्रुप जब चलते हैं तो ऐसे सिखाया जाता है। तो ये ग्रुप उसको उनको बताया जाता है कि ये जो जस्ट, हाँ, उसको ये सिखाया जाता है कि हमें ग्रुप के अंदर जाना है। तो वो ग्रुप की ऐसी टीम पूरी सेलेक्ट करता है जो पहले उसको आगे लेके जाए। तो उसका जो सेकंड इन कमांड होता है वो बहुत पावरफुल बंदा होता है। तो पहला लीडरशिप लेसन उसमें बताया जाता है कि उसने जो टीम सेलेक्ट करी वो वन ऑफ द बेस्ट टीम थी अकॉर्डिंग टू हिज सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं कि वो सब परफॉर्मर थे, पर वो सब अपने अपने एरिया में परफॉर्मर थे। जिसको शिप को मैनेज करना आता था वो परफेक्ट था। जिसको इलेक्ट्रिसिटी का काम करना आता था वो परफेक्ट था। परफेक्ट अपने काम में होने के साथ भी उनके अंदर अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। ऐसे लोगों को ही वो सेलेक्ट करता है। तो जब वो सेलेक्ट करता है ऐसे लोगों को, तो सिचुएशंस जो आती हैं बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। क्या ना कि 1914 में कहते हैं बिल्कुल ठंडी सुबह को ये निकलता है अंटार्कटिका की यात्रा पर, ठीक है ना। और टोटल जो उनका डिस्टेंस होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर्स का होता है, जहां पर उनको बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों के बीच में से निकलना होता है। और इतनी जबरदस्त ठंड होगी कि कोई इमेजिन कर नहीं सकता। इनफैक्ट वहां पे कोई गया ही नहीं होता, तो नो बडी नोज कि वहां कितनी ठंड हो सकती है। सिर्फ वो अज्यूम कर सकते थे कि बहुत ठंड होगी। शिप चलता रहता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जनवरी 24 1915 को इनका जो शिप होता है वो 1915 में 24 जनवरी को एक आइस पैक में अटक जाता है। एक बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा आता है और जब ये दूर से देखते हैं कि बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा है तो क्या करें, ये अपने कैप्टन के पास जाते हैं, कैप्टन से पूछते हैं। कैप्टन बोलता है कि ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेट्स मूव ऑन, कंटिन्यू अवर जर्नी, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। उस समय तक 6 महीने निकल चुके होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने निकल चुके होते हैं। 6 महीने निकलने के बाद ये एक बिल्कुल जब डीप में पहुंच जाते हैं, वहां पर एक बर्फ के टुकड़े के अंदर इनका शिप जाता है और जाते जाते फंस जाता है। और जब वो शिप फंस जाता है तो अब उस शिप को बाहर निकालने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है।
या ये पहला सीन है, मतलब पहला सीन हुआ कि शकलटन एक पर्सन है जिसने टीम को आइडेंटिफाई करा। 6 महीने सब कुछ सही चल रहा है। 6 महीने के बाद इनकी टीम, इनका जो विजन होता है, पहला विजन इनका क्या होता है? पहला विजन होता है कि हमें पहला बनना है अंटार्कटिका की यात्रा करके नॉर्थ पोल के बिल्कुल लैंड में पहुंचना। वी वांट टू बी द फर्स्ट। ये पहला बनना चाहते थे, दे वांट टू एक्सप्लोर। पर जब शिप फंस जाता है तो वो अपना विजन को रीडिफाइन करते हैं, क्योंकि अब शिप बुरी तरह से फंस चुका होता है। ठीक है ना? और मैं आपको वो सीन दिखाता हूं जब वो शिप फंस चुका होता है। अगर आपको यस, जब ये शिप शिप चल रहा होता है। Shackleton orders a special watch. ये पूरा शिप The होता है। complacency is shattered one evening in early April. Contenders. Shackleton gives up the boss. Was very dependent on Any opening. ये शिप The pressure is a ऐसे serious business, यहाँ पर- and if we don't get out of it soon, I would not give much chance of ever getting away from here. The situation looks grim, yet the men have an abiding faith in the one they call the boss. सारे मेंस का ना अपने बॉस पे बहुत ट्रस्ट होता है। For scientific leadership, give me Scott. For swift and efficient travel, Amundsen. But when you're in a hopeless situation, when there seems no way out, get down on your knees and pray for Shackleton. After more than a month in the pack, Shackleton decides to try to move the 300-ton Endurance manually into open water. For बेसिकली इनको ये समझ में आता है कि 3 किलोमीटर के बाद पानी है, तो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम वो 3 किलोमीटर का रास्ता जो है उसको हम क्रॉस करें, मतलब शिप को किसी तरीके से बाहर निकालें। close to 2 days, the crew works with virtually no rest, exhausting themselves battling against the ice. When they are at the point of dropping, Shackleton has his crew push the ship backwards as far as she will go. He intends to ram his way through ice that was up to 18 feet thick. While he stands alone on the deck, the ship valiantly plows to within 400 yards of open water, but can go no farther. On February 24th, 1915, Shackleton gives up trying to free the ship, and the Endurance becomes a winter station. She will drift with the vagaries of the pack ice, which will take her anywhere it wanders. For the most part, the crew accepts it all with good cheer. They still hope that they can eventually complete their mission. The men keep up spirits with games of soccer on the tightly frozen pack, waiting for the ice to open. On board, Shackleton adheres to his deep belief in the importance of strict routine. There's some grumbling about chores, but the boss's authority is rarely questioned. अब शेकल्टन क्या करता है, जब ये सारे फंस जाते हैं तो मतलब इसमें जो बताया हुआ है, जो मैं आपको बड़ा डिटेल बता रहा हूँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शेकल्टन एक काम करता है। उसको अभी समझ में आया था कि शिप आगे नहीं जा सकता और उसके जो लोग हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो वो अपनी टीम को कुछ कुछ काम असाइन कर देता है। और वो एक डिसाइड करते हैं कि हर डे एक पर्सन परफॉर्म करेगा। मतलब दे डिसाइडेड कि अब हम आगे नहीं जा सकते हैं, शिप हिल नहीं सकता, वी हैव टू ओनली वेट, हमें सिर्फ वेट ही करना है। सो व्हाट वो अपनी टीम को काम देता है कि बॉस तुम्हारे को ये काम है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें शिप साफ करना है, तुम्हें इसका कचरा हटाना है, तुम्हें इसको पानी को ये करना है। डेली यू हैव टू डू दिस टास्क, ताकि लोग खाली ना हो जाएं, पहला। और दूसरा, वो ये भी इंश्योर करता है कि लोग को डिप्रेस्ड ना हो, तो वो उनके लिए रिक्रिएशन के लिए बोलता है कि हर आदमी अपना अपना कुछ क्रिएटिविटी को लेके आएगा, अपनी क्रिएटिविटी को लेके आएगा, और हर दिन एक पर्सन कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा। सो वो एक ऐसा डे बनाते हैं एंड सारे लोग उसकी तैयारी करते रहते हैं। सबकी एक एक करके बारी आती है, जितने भी लोग होते हैं।
सो दैट्स हाउ वो पूरा, मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि शैकलटन जो है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ टीम के पास कोई काम नहीं है, तो वो उनको काम में बिजी रखता है। टीम को ये समझ में आता है कि यार हमारा शिप जो है वो फंस गया है, अभी पता नहीं खाने कितने दिन का है, पर उनका बहुत ज्यादा फेथ होता है अपने कैप्टन के ऊपर, और कैप्टन का भी अपनी टीम के ऊपर फेथ होता है। तो सिर्फ यही बात बोलता है कि आप मेरे लिए प्रे करो कि मैं चीजों को सॉर्ट आउट कर दूं। दैट्स द थिंग। The ship's hold becomes known as the Ritz, and life continues in relative comfort. Costumed reviews are very popular. Shackleton wins the award for Worst Singer, though there are several close contenders. The real enemy is the tedium, dealt with by ever more drastic measures. We all had our hair cut and then we had our photograph taken in the Ritz. We do look like a lot of convicts and we're not much short of that life at present, but still hoping to get to civilization someday. और सिर्फ एक ही चीज होती है इनके पास, होप। The latest litter of pups is also a diversion, even for gruff old sailors like Tom Crean. Frank Wilde is fond of Samson, the biggest of the animals. The irrepressible dogs become more and more like pets to many of the men. एक चीज वो और करता है एज अ लीडर, जो सबसे बड़ा काम वो करता है, वो ये करता है, वो ये देखता है कि उसके ग्रुप में नेगेटिविटी कौन फैला रहा है। नेगेटिव कौन फैला रहा है, मतलब कौन नेगेटिव बातें कर रहा है, कौन ऐसी बातें कर रहा है जिससे टीम का मोरल गिरे। क्योंकि आप सिचुएशन सोचो, बर्फ में फंसे हुए हैं, कोई हेल्प नहीं है, किसी को नहीं पता ये शिप कहाँ पर है, ये एक जगह पे अंटार्कटिका में पड़े हुए हैं, आगे जा नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते, तो लोगों का कितने लोग जो होते हैं वो मेंटली टूट जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखता है कि ये पॉजिटिव लोगों को अलग करता है और नेगेटिव लोगों को अलग करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों का ग्रुप बना देता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उनको बोलता है तुम दोनों ग्रुप में हमेशा रहोगे। उन लोगों को ग्रुप में काम देता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है ये पॉजिटिव है और ये बहुत नेगेटिव है, उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव के ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, और ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको काम देता है, और वहां से वो दोनों की एनर्जीज को बैलेंस होता है। एक आदमी बोल रहा है मुझे नहीं पता हम कब तक सर्वाइव करने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, दूसरा होप देता है नहीं, वी हैव टू फेथ, वी हैव अ कंप्लीट फेथ ऑन आवर हेड, और हमारे को बॉस के ऊपर पूरा फेथ रखना है, सारी चीजें करनी है। सो दीज आर द टेक्निक्स। फिर जो जैसे होता है कि पपीज के साथ, और वर्स्ट सिंगर का अवार्ड, वर्स्ट पेंटर का अवार्ड, मतलब ऑल दीज थिंग्स टीचेस अस कि एक लीडर क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे काम कर रहा है, कैसे टीम को मोटिवेटेड रख रहा है। बेस्ट सिंगर का अवार्ड नहीं देता, वो वर्स्ट सिंगर का अवार्ड देता है कि जो सबसे बेकार गाना गाएगा हम उसको अवार्ड देंगे, ताकि टीम मोटिवेटेड रहे, ताकि हर आदमी आगे आके पार्टिसिपेट करे, ताकि कोई ये ना बोले मुझे तो गाना नहीं आता। दैट इज द स्पिरिट। The complacency is shattered one evening in early April. Millions of tons of ice are being shoved up against the Endurance. Shackleton recalled that ominous night. During the night of the 3rd, we heard ice grinding to the eastward, and in the morning we saw that the young ice was rafted 8 to 10 feet high in places. This was the first moment of the danger that was so greatly to threaten us in later months. I gave orders that accumulations of snow, ice and rubbish alongside the Endurance should be shoveled away. The enormous efforts to relieve the pressure on the ship are hopeless. Even with her 3-foot-thick hull, the Endurance is at the mercy of far greater powers than she could ever hope to overcome. July 14th, 1915. All hands standing by. We had a slight shock last night. There was a noise under the bottom aft, the same as if the ice had broken up. The boss thinks it was a whale, but I think's different. Shackleton orders a special watch. It is a stressful and exhausting night, and in the morning, the pressure looks even worse. The assaults by the ice continue for weeks. बेसिकली चारों तरफ से आइस बढ़ जाती है, ठंड आ जाती है, बहुत आइस हो जाती है, और इनके शिप के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। इनके शिप के एक हिस्से पे The wind howled in the rigging,
and I couldn't help thinking it was making just the sort of sound you would expect a देखोगे कि शिप जो है वो एक साइड पे टर्न करना शुरू कर देता है क्योंकि एक तरह से प्रेशर आता है पूरा। human being to utter if they were in fear of being murdered. Shackleton said at length, "You'd better make up your mind that it is only a matter of time. What the ice gets, the ice keeps." पर वो बार बार अपनी टीम को एक ही बात बोलता है पूरे सिचुएशन में कि आइस मेल्ट होगी, गर्मी आएगी, मेल्ट हो जाएगा, हम सीधे हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएगा, सीधे हो जाएंगे। यहाँ पर शैकलटन जो है वो रोज अपने आप से बातें करता था। अगर आप शैकलटन की पर्सनालिटी पे जाओगे तो शैकलटन रोज अपने आप से बातें करता था, रोज अपने आप को मोटिवेट करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके ऊपर 28 लोगों की लाइफ है। वो खुद मोटिवेट रहता था, खुद मोटिवेट करता था एज अ लीडर, और वो टीम को हमेशा पॉजिटिव बोलता था, नहीं बर्फ खत्म होगी, धूप आएगी, वन डे सनशाइन विल कम, वन डे सारा पिघलेगा, एंड वन डे दिस आइस विल टर्न इनटू वाटर। सो दैट इज द अप्रोच इतनी टफ सिचुएशन में भी एज अ लीडर हु इज डूइंग ऑल दोस थिंग्स। The unrelenting pressure damages the rudder of the ship beyond repair. Wilde and Shackleton are stranded. Trapped for more than 7 months in the pack ice, they are now 1,200 miles from civilization. The crew has no communications and no hope of outside help. They have only Ernest Shackleton. October 18th, 1915. The Endurance has been trapped for 9 months. A wave of pressure causes the ship to keel over 30 degrees in a matter of seconds. Bent and twisted, she begins to leak dangerously. All hands work ceaselessly throughout an interminable night, pumping and repairing the damage. Even blankets are used to try to contain the leak. At 5 p.m. on October 27th, Shackleton gives the order to abandon ship. फाइनली उनको समझ में आता है शिप अब डूबने वाला है, कुछ नहीं हो सकता। The attack of the ice reached a climax at 4 o'clock. After long months of ceaseless anxiety, after times when hope beat high and times when the outlook was black indeed, the end of the Endurance has come. To his men, Shackleton says simply, "Ship and stores are gone, so now we'll go home." But in his own diary he writes, "I pray God I can manage to get the whole party to civilization." The boss is facing the most crucial test of his life. Shackleton tells his crew that they will head for the nearest supply depot, left behind years earlier on Paulet Island, 346 miles away. Within a few days, the Endurance loses her final struggle. ये सब अपने शिप को टूटते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा आता है कि जब ये सब बैठे होते हैं और शिप इतनी आंखों के आगे टूट रहा होता है और डूब जाता है। The men attempt to march, but the terrain is impassable. Everywhere they turn, the ice blocks their way. I would have thought if anybody had had to take a bet on it, they'd have said, I would have said they were probably 10, 20 to 1 against bringing them back alive. I mean, after all, there they were, sitting in the middle of the Weddell Sea, in the middle of the pack ice, miles from land. It's very difficult to contemplate what the आप एक सिचुएशन को खुद इमेजिन करके सिर्फ ये देख लो कि कितने माइल्स अवे हैं फ्रॉम सिविलाइजेशन, लोगों से कहीं पर भी कोई हेल्प आने की जरूरत कोई मतलब ही नहीं है। दे आर जस्ट स्टक, दे डोंट नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। कोई सपोर्ट नहीं है, शिप डूब चुका है, बर्फ पड़ रही है,
खाना खत्म होता जा रहा है। अंडरस्टैंड कि वो लीडर जिसके और लीडर के ऊपर लोगों का फेथ है। आप सिर्फ शकलटन के बारे में सोचो कि शकलटन कैसे चीजों को हैंडल कर रहा होगा। हम तो छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि जॉब आ रही है, जॉब जा रही है, बॉस ने ऐसा बोल दिया, बॉस ने ऐसा बोल दिया। पर ये जो रियल लाइफ स्टडीज होती है, ये हमें हमारे को ये शो करती है, ये प्रूव करती है कि ये भी हमारी तरह ह्यूमन बीइंग है और हमारे अंदर भी वो पावर है कि हम अपनी भी लाइफ की सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। क्यों हम अपनी छोटी छोटी चीजों में अटके पड़े हैं? कमांड योर लाइफ, यू कैन कमांड योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। आप खुद अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आपके अंदर उतना माइंडसेट, आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग होना चाहिए। कहते हैं ना कि वो वही यहाँ पर पूरा खेल बताया गया। ये पूरा शिप टूटता है, ये शिप को जाते हुए देखते हैं, देखने के बाद फिर टीम का मोरल बिल्कुल हिल जाता है, टीम बिल्कुल डर जाती है। अब लोग आपस में बातें यही करते हैं कि यार अब तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। सिर्फ 2 बोट्स होती हैं इनके पास जिसमें सारे लोग नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। और धीरे 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 इनका खाना भी खत्म होता है। कैप्टन बार बार इनको यही दिलासा देता है, जो अपने कुक के साथ मिलके, कि अभी बहुत खाना पड़ा है, बहुत खाना पड़ा है। सर्कुलेट करता है उनको, उनके मोरल को। उसका सिर्फ एक ही काम होता है, ही कीप्स बेसिकली पुशिंग हिज टीम, उनके पुशिंग देयर मोरल कि नहीं हम कर लेंगे, हम घर जाएंगे, वन डे वी विल गो, वन डे वी विल रीच, वन डे वी विल रीच। वो सारे के सारे सिचुएशंस वो लेके आता है एज अ लीडर। तो मैं ये आपको अच्छे बताना चाहता हूं। देखो, properly and found myself falling asleep at the tiller. Yet Pushed our gear onto the larger of the two pieces. Our home was being shattered under our dogs. Now they can eat. They come tantalizingly close to Paulet Island, but in the end, बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये 2 बोट्स लेते हैं। शकलटन जब वो डूब जाता है तो ये मैप के थ्रू देखते हैं कि कुछ दूरी पे एक और आइलैंड है, हम वहां तक जाते हैं, शायद हम वहां पे हमारे को खाना मिल जाए, बिकॉज एट दिस प्लेस खाने को नहीं है। तो एज अ लीडर ये गाइड करता है। 2 बोट्स के अंदर ये जाके वहां पहुंचते हैं दूसरी जगह पे। वहां पर भी कुछ सीन ऐसा हो जाता है कि एक जो जिस पे जब ये पहुंचते हैं उसमें आइस के 2 टुकड़े अलग हो जाते हैं। एक टुकड़े पे ये क्या कहते हैं, शकलटन चला जाता है, क्योंकि वो लीड कर रहा होता है, वो जब जगह को ढूंढ रहा होता है तो एक आइस पूरी ब्रेक कर जाती है एक जगह पे। वो मतलब वो खुद एक आइस ब्रेक के साथ उधर चला जाता है, आधी टीम इसकी यहाँ चली जाती है। फिर इसकी ये टीम को इंस्ट्रक्ट करता है, वहां से वो बोट लेके आते हैं, इसको ये वापस लेके जाते हैं और इनको ये समझ में आ जाता है कि अगले 1 महीने के अंदर तक तो हम इस आइस के टुकड़े पर रह सकते हैं, पर 1 मंथ के बाद ये आइस का टुकड़ा भी खत्म हो जाएगा और इनके पास खाना भी 1 मंथ का ही बचा होता है। तो दैट्स हाउ ये जर्नी अपनी करते हैं। तो they drift helplessly past it and its vital supply depot. They have been marooned for 14 months. Yet Shackleton somehow manages to keep his men from sinking into what could become fatal despair. People tell me that 50 times a day, people said, "What do we do now, boss? Okay, boss?" He was known as the boss. And I think they literally had a pattern of activity that he controlled. And when they got to the end of a task, they turned to him, "What do we do now, boss?" The boss has to plan a new course of action after their near miss with Paulet Island. He will aim for Elephant Island instead, 100 miles to the north. The next decision on the morning of April 9th is made for him. At 11 a.m., our floe suddenly split right across under the boats. We rushed our gear onto the larger of the two pieces. बेसिकली आप समझ रहे हो ना, जो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि बार बार टीम के लोग उसके पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, और ये नए नए टास्क क्रिएट कर रहा है। दिस शकलटन जो है एज अ लीडर नए नए टास्क क्रिएट करता था धीरे धीरे धीरे, और जब उसे लगता था कि अब खत्म हो रहा है, वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव था कि मैं किसी तरीके से विंटर्स सरवाइव कर जाएं, क्योंकि समर्स में हमारे को हम अपनी बोट के थ्रू भी कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि बर्फ हटेगी और पानी होगा तो वी विल बी एबल टू रीच। बट उसका काम था कि वो 6 मंथ तक किसी तरीके से अपने पूरे टीम मेंबर्स के साथ सस्टेन करे। बट आप इमेजिन कर सकते हो ऑलरेडी 8-9 महीने हो चुके हैं, वो एक जगह पर है, खाना है नहीं, कोई आ नहीं रहा, कितनी मेंटली हम तो यहाँ पर 2 दिन में हिल जाते हैं। एक कैप्टन को 8 महीने तक 9 महीने तक अपनी टीम को मोरल को हाई रखना, वो कितना मुश्किल होगा। उसके बाद ये लास्ट में डिसाइड करते हैं एलिफेंट आइलैंड पे हम जाते हैं, क्योंकि वो एक सेफ आइलैंड होता है। तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि वी विल गो टू दैट प्लेस। Our home was being shattered under our feet.
They take to the boats and in a roaring sea begin a dash for Elephant Island. For the next 7 days, they fight a heroic battle. The storms are enormous. They go days without sleep. Thirst becomes overwhelming, and their mouths and tongues are so swollen they cannot swallow food. Leading them through 17 hours of darkness each day is Frank Worsley, Shackleton's brilliant navigator. The temperature was 20 degrees below freezing point. Greenstreet's right foot had got badly frostbitten, but Lees restored it by holding it in his sweater against his stomach. My eyes began to fail me. I could not see or judge distance properly and found myself falling asleep at the tiller. Yet Worsley's uncanny navigation brings the 3 battered craft to the bleak shores of Elephant Island. The men have not touched solid ground in more than 16 months. For the first time in 3 days, they have a meal and a hot drink. Uninhabited Elephant Island is a desolate and dangerous place. They have one forlorn hope, the whaling station on South Georgia Island, 800 miles to the northeast. Shackleton decides to attempt the almost suicidal journey. The night before he leaves, he writes a note to Frank Wild. April the 23rd, 1916, Elephant Island. बेसिकली जब ये एलिफेंट आइलैंड पहुंच जाते हैं, कुछ दिन तो ये वहां पे सरवाइव कर जाते हैं. उसके बाद अब इन्हें समझ में आता है यहाँ तो कोई आने नहीं वाला. तो ये शैकल्टन ट्राई करता है कि 800 माइल दूर पे ही इनका पहला बेस स्टेशन है, जो इनके मैप के हिसाब से था, जहां पर शायद इनको कोई लोग मिलेंगे. तो वो एक डेंजरस इवेंट, मतलब एक जर्नी स्टार्ट करता है खुद एक्शन लेके आगे बढ़ने की, कि मैं अब जाऊंगा. ही लीड्स दैट थिंग कि वो अपनी पूरी टीम में से 7 या 6 या 7 स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, जो 1 ईयर तक सस्टेन कर चुके होते हैं, जो पॉजिटिव माइंडेड लोग होते हैं, उनको वो अपने साथ लेके चलता है. Dear sir, in the event of my not surviving the boat journey to South Georgia, you will do your best for the rescue of the party. You are in full command from the time the boat leaves this island. You can convey my love to my people and say I tried my best. Yours sincerely, E.H. Shackleton. The next morning, the 22 men who will be left behind gather on shore. The optimists expect the boss back in a few weeks. Shackleton and 5 other men face the world's most vicious sea in a 23-foot open boat. Elephant Island, April 24th, 1916. We watched them until they were out of sight, which was not long, for such a tiny boat was soon lost to sight on the great heaving ocean. As she dipped into the trough of each wave, she disappeared completely, sail and all. 3 days out, their craft is hit by a powerful gale. Enormous waves, 50 or more feet high, batter them relentlessly as they struggle in a last desperate effort to reach help. And these men were in this tiny 23-foot boat for 16 days altogether, being tossed around with these wet reindeer clothes and reindeer sleeping bags chafing them, and great wet rocks of ballast bumping against them in huge waves. I mean, they were in storm conditions, gale conditions, virtually for the entire time of the crossing. And I think Worsley only had one chance to take a sighting from the sun to work out their position, and the rest was done entirely on dead reckoning. On May 8th, against all odds, the men sight the South Georgia coast. They spend nearly 2 days trying to make a landing on the island's treacherous shores. बेसिकली क्या होता है, जब वे बिल्कुल पहुंचने वाले होते हैं तो उस समय भी एक तूफान आ जाता है, और जब वो तूफान आ जाता है तो इनको सामने वो दिख रहा होता है जॉर्जिया का जो हिल स्टेशन होता है, बट स्टिल 2
दिन इनको लग जाते हैं वहां पहुंचने में। उस सिचुएशन में एक सिचुएशन ऐसी आती है, अगर आप बुक पढ़ोगे उसमें बहुत नाइसली एक्सप्लेन करा हुआ है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब शैकल्टन भी हिम्मत तोड़ देता है कि नहीं यार, अब हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इनकी बोट में पूरा पानी भर चुका होता है, शिप ने इनकी बोट को पूरा तोड़ दिया होता है, और ये रिपेयर करने का सामान सारा खत्म हो चुका होता है। तो शैकल्टन को लगता है कि अब तो हिम्मत मतलब वो लास्ट स्टेज पे अपनी हिम्मत की होता है कि बस अब तो शायद बचना ही नहीं है। सडनली फिर कुछ मिराकल्स होते हैं कि तूफान रुकता है, और ये जब तूफान रुकता है तो ये देखते हैं कि बिल्कुल दे आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट आइलैंड जहां पर इनको पहुंचना होता है। वो उस आइलैंड के बिल्कुल करीब होते हैं। मतलब इतना करने के बाद ये 6 लोग, खाना नहीं कुछ नहीं, वहीं से ही उठा के, मतलब अगर आप इनकी जर्नी को देखोगे, पानी के अंदर से कुछ कुछ निकाल रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं। वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही डॉग्स को मारकर खाते हैं। आधे लोग बीमार पड़े हैं, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड स्टिल दे हैव अ कंप्लीट फेथ इन देयर लीडर। ये लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में बताया गया है, और लीडर कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, उस ट्रस्ट को मेंटेन कर रहा है, वो सारी सिचुएशंस इसके अंदर बताई गई हैं। And it is the most wild coast with huge glaciers flowing down into the sea. And I think it was just as they finally managed to get through some rocks into this tiny little bay and drag the boat ashore, stumbling and slithering on the wet rocks and seaweed, that the main pin holding the rudder fell out just at that moment as they landed. Incredible fortune that it had lasted till then. Fate compels them to land on the side of the island opposite the whaling station, which lies over an interior of glaciers and mountains that no human being has ever crossed. बेसिकली क्या होता है, ये ऐसी जगह पे लैंड कर जाते हैं जो बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब अभी किस्मत हो कैसा, ये उस जगह पे लैंड करते हैं, बहुत बड़ा वो आइलैंड होता है, आप मान के चलो कि कई 100 किलोमीटर लंबा वो आइलैंड है। और वो स्टेशन जो है, और जिस जगह पे ये पहुंचते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट जगह पर होता है बेस। और 2 ही रास्ते होते हैं, या तो ये बोट के थ्रू जाएं जो सिंपल रास्ता होता है, पर इनकी बोट की हालत सिचुएशन ये हो चुकी होती है कि वहां नहीं जा सकते थे बोट को तो ये, और बाकी जो था वो सारा ग्लेशियर था, और ग्लेशियर का ना इनके पास मैप है, ना आज तक कभी कोई गया है उन ग्लेशियर्स को क्रॉस करके, किसी ने कभी ट्राई भी नहीं करा उन ग्लेशियर्स को क्रॉस करना, वो इतने इंटेंस ग्लेशियर्स थे। तो इनको यही होता है कि अब हम कहाँ से जाएं, दिस वे और दैट वे। देन शैकल्टन डिसाइड कि हम ग्लेशियर वाला रास्ता लेंगे, बिकॉज एटलीस्ट कहीं तो विल रीच। Terribly weakened, Shackleton is called on to lead yet another heroic effort. He has a bit of rope, a carpenter's adze, and some screws which the men twist into the bottom of their shoes. Leaving behind the 3 men who are too ill to make the trip, Shackleton sets off with Frank Worsley and Tom Crean. Shackleton was a polar expert, he was a seaman, but he wasn't really a mountaineer. And yet, when they arrived on the wrong side of South Georgia and had to cross it, they were having to do a very serious bit of mountaineering. And I think that's where this incredible intuition came in. They knew roughly where they were going, but they had no maps. At one point, Shackleton finds himself at the top of an impossibly steep slope. Once again, he decides to take an enormous gamble. But by this time, night was falling and the mist was covering the bottom of the slope. They'd no idea what was at the bottom. They tried a few steps down, but it was evident that if they continued, they would die of exposure. So they coiled their rope down, the 3 of them sat on it, and they put their arms around each other's waists and they pushed off into space. They careen crazily down a 1,000-foot mountainside. At the bottom, they are bruised and torn. But to have survived at all is another in a long line of miracles. At about 4 o'clock in the afternoon of May 20th, 1916, 3 filthy, stringy-haired men dressed in tatters walk into a whaling station on South Georgia Island. Shackleton has to introduce himself to a man he has known for years. "Don't you know me?" he asks. The whaler hesitates.
I know your voice, and the response comes, my name is Shackleton. Some say the old sailor turned away and wept. बेसिकली इनको बताया, सबको पता होता है कि वो शिप डूब चुका है और 2 साल पहले जो शिप चला था अब उसमें कोई नहीं बचा और कोई इसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं करता है। ये कुछ ऐसे डिसीजन लेता है, उसने बोला ना कि वो डिसीजंस लेता है कि मेरे को इस पे जाना है या यहाँ जाना है। देयर हिज इंट्यूशन कम इनटू प्ले, और वो इंट्यूटिवली डिसीजन लेते हुए, मतलब वहां पर भी वो 3-4 दिन चलते, 3-4-5 डेज वो चलते हैं पैदल पैदल पैदल। देन दे रीच द अदर अदर साइड, और फिर वो बिल्कुल दाढ़ी बढ़ चुकी है, कोई इनको पहचान नहीं रहा है। देयर दे रीच टू दैट स्टेशन, जो एक स्टेशन होता है। तो दैट्स द थिंग। Less than 3 days later, Ernest Shackleton leaves South Georgia to return for his men on Elephant Island. It takes him more than 3 months and 4 different attempts. On August फिर जब ये आ जाता है तो पहले बेसिकली इसमें बताया ना कि कुछ जब ये आइलैंड पे पहुंचते हैं तो 2 लोग आगे जाते हैं, बाकी को ये वहीं छोड़ देते हैं। फिर ये पहले बोट से 3 उनको लेके आते हैं, फिर ये ट्राई करता है, उसमें 4 अटेम्प्ट मारता है। 4 अटेम्प्ट में 3 मंथ और लग रहे हैं। आप सोचो 3 मंथ्स और लग गए। जब ये आ चुका है, इसके लोग वहां पर हैं, इनके पास कोई ऐसा शिप नहीं होता है जो शिप बर्फ को काट सके। एक शिप ये ब्रिटेन से मंगाते हैं जो बहुत दूर से आता है, उसमें टाइम लगता है। 3 शिप ऑलरेडी ब्रेक हो जाते हैं, इनको वापस आना पड़ता है। 3 मंथ्स तक उनकी टीम कंप्लीट फेथ के साथ रहती है। 30th, 1916, he finally sights the dismal coast. A signal fire can be seen burning faintly. Shackleton, though, has no way of knowing how many of his men are still alive. Yet on the beach is gathering the entire Elephant Island crew. All 22 men have survived. On shore, the realization slowly sinks in that the boat is really there, that the unendurable has been endured. Ernest Shackleton, the boss, has come to take them home. यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने लिखी है कि शकल्टन जो था नेवर अचीव्ड एनी ऑफ हिज गोल। उसने कई गोल बनाए। वो चाहता था मैं पैदल जाऊं, ठीक है, मैं कुछ कुछ करूं। ही लॉस्ट द रेस ऑफ द पोल, फेल्ड टू क्रॉस द एंटार्क्टिक। काफी सारी चीजों में वो करना चाहता था, बट बाद में यही बताया जाता है, अगर आप उसकी केस स्टडी पढ़ोगे, कि ये एक ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है जहां पर उसने सबको मतलब पूरी, जब इनका वेलकम भी करा जाता है ना, इट वाज अ ग्रैंड वेलकम, बुलाया जाता है। लोग दूर दूर से इनको देखने आते हैं कि कैसे 2 साल तक ये लोग सरवाइव कर गए। आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए इस तरह की सिचुएशन का, व्हेन वी थिंक ऑफ एज अ लीडर, कि इसमें लीडर्स के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं। अगर मैं बात करूं लीडर्स के लिए जो लेसन्स हैं, सबसे पहला लेसन इसमें जो आता है कि क्लैरिटी थी शकल्टन को, मुझे क्या करना है। ये ऑलवेज हैव क्लैरिटी इन हिज माइंड, और रैपिड रिवीजन करता था। वो रैपिड, बार बार वो रिवीजन को चेंज, ऐसा नहीं कि आज सोच लिया कि मेरे को यहां जाना है तो वही काम कर रहा है। वो इमीडिएटली अपने एक्शन को चेंज करता था बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। जैसे ही उसको समझ में आया कि एंड्योरेंस जो है वो क्रैश हो गया है, वो अपने गोल को रिफ्रेम करता है और अंटार्कटिका को क्रॉस का जो मतलब उसका गोल अंटार्कटिका को क्रॉस करना नहीं होता, उसका गोल चेंज हो जाता है, मुझे अपने सारे लोगों को सही सलामत वापस घर लेके जाना है। ठीक है ना। ये लीडरशिप टेक है। व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज, रीडिफाइन सक्सेस क्विकली एंड कम्युनिकेट अ न्यू मिशन क्लियरली टू रेस्टोर फोकस। अपनी टीम को आप क्लियरली गाइड करो एज ए लीडर। कभी आप अपनी टीम को गाइड करते हो, आपको लगता है कि ऊपर चेंजेस हो रहे हैं और थिंग्स चेंज हो रही हैं, तो जो गोल था, गोल को चेंज करके यू इमीडिएटली कम्युनिकेट दैट टू योर टीम मेंबर। दूसरा उसने जो काम करा वो करा मॉरल इंजीनियरिंग। मॉरल इंजीनियरिंग मतलब कि उसने
हमेशा एक्सरसाइजेस करता रहा। कभी उसने आइस सॉकर ऑर्गेनाइज करा, कभी उसने कॉस्ट्यूम पार्टीज करी, कभी उसने थिएटर्स करा, कभी उसने म्यूजिक पार्टी करी, ठीक है ना, कभी उसने डॉग के साथ रेस करी। लीडर्स यही करते हैं। एज अ लीडर जो होता है ना, लीडर्स कुछ इंटेंशनल रिचुअल्स और कुछ ऐसी मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं जिससे टीम स्पिरिट हमेशा बनी रहे, टीम के अंदर का स्ट्रेस हमेशा कम हो, और वो हमेशा पॉजिटिव सोचें। जैसे मैंने बताया, उसने टीम्स को अलग अलग कर दिया था। एक नेगेटिव उसने आइडेंटिफाई करे स्मार्टली कि मेरी टीम में कौन नेगेटिव हैं, जो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जो जल्दी डिप्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि 18 लोगों का मेंटल लेवल वो नहीं था। जो जल्दी आ जाएंगे उनको, उनके साथ उसने पॉजिटिव लोगों को अटैच करा, एंड दैट्स हाउ ही मैनेज दैट थिंग। फिर उसके बाद जब भी था इक्विटी रखी उसने, कभी बॉसिज्म नहीं रखा। जब सारे ठंड में सोए तो वो भी सोया, जो उन्होंने खाया उसने भी वही खाया। जितना फेयरनेस रखी, विजिबलनेस की, मैं भी वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हो, सेम थिंग, जिससे उसकी लॉयल्टी हमेशा मेंटेन रही। कभी भी वो बायस नहीं रहा, कभी वो बायस नहीं रहा। उसने हमेशा वेट करा कि परफेक्ट कंडीशन कब है, और क्राइसिस के अंदर जो उसके डिसीजंस थे हमेशा, इवन जो डिसीजंस थे वो इम्परफेक्ट होते हुए भी वो दूसरों को इंस्पायर करते थे, टीम मेंबर्स को, और वो नया रास्ता ओपन करते थे, क्योंकि क्लियर तो कुछ था ही नहीं, तो डिसीजन तो परफेक्ट हो ही नहीं सकते। तो जितने भी इम्परफेक्ट डिसीजन भी उसने लिए वो भी आगे चलता गया। फिर एक और भी चीज थी, दैट इज अडेप्टिव रिस्क मैनेजमेंट। अडेप्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट व्हाट, कि उसने अडेप्ट करा। उसने पहले, जब उसको ना आइस के सिग्नल मिलने शुरू हो गए थे, तो उसको उनको समझ जाना चाहिए था पहले कि आगे आइस को हमारा शिप क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बट उन्होंने एक एक्शन लिया, और जब एक्शन लिया फिर उन्होंने 9 मंथ वेट करा राइट टाइम के आने का, ठीक है ना। तो उसने एक रिस्क लिया। मोमेंट टू मोमेंट रियलिटीज चेंज हो रही है, तो वो बोल्ड डिसीजंस ले रहा था कि नहीं हम जाएंगे, नहीं अब शिप डूबने वाला है तो अब हम बाहर अपना कैंप करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, अगले आगे वाले उस पे आइलैंड पे चलते हैं। अब उसने फिर एक्शन लिया कि आप सब यहीं रहो, हम एक टीम वहां जाएंगे। तो ही वॉज टेकिंग डिसीजंस। कम्युनिकेशन उसका ट्रांसपेरेंट था, इंपॉर्टेंट बात थी। उसने सारे डेली अपडेट्स को देता था, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था वो अपनी टीम को पूरे अपडेट्स देता था, ओपनली शेयर करता था सारे अंदर की बातें, ताकि टीम का विश्वास बना रहे। स्ट्रेटेजिकली उसने टीम को डिप्लॉय करा, जिस आदमी को जहां पे जाना था, डालना था, उसने हर पर्सन को स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करा। लीडर्स वही होते हैं जो अपनी टीम की स्ट्रेंथ जानते हैं, उनकी वीकनेसेस जानते हैं, उनसे काम निकलवाना जानते हैं, उनके टेम्परामेंट को जानते हैं। वो जानता था, और उसने उसके हिसाब से काम करा। एंड उसका कमिटमेंट, कहते हैं ना, रिलेंटलेस कमिटमेंट टू पीपल। अपनी टीम के लिए उसका कमिटमेंट था कि मेरे को सबको बचाना है, मुझे सबको बचाना है, मुझे सबको बचाना है। फिर फ्यूचर फोकस हो रहता था। इसमें एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, सर्वेंट लीडरशिप, जो आजकल बताया जाता है। उस समय सर्वेंट लीडरशिप वर्ड शायद था ही नहीं, बट अल्टीमेटली वो सर्वेंट लीडरशिप ही कर रहा था। वो लीड कर रहा था फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम विद इन, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को लेकर चलता था, और फ्रॉम फ्रंट से काम करता था, ठीक है ना। उसका जो एक्शंस होते थे वो विजिबल होते थे सारी टीम को, उनको लगता था यार अगर हमारा बॉस ये कर रहा है तो हमें भी ये काम करना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, ब्लेंड ऑफ रूथलेसनेस, रियलिज्म एंड अनवेवरिंग ऑप्टिमिज्म था उसके अंदर। ऑप्टिमिस्टिक बहुत था, और अपना बर्डन भी वो शेयर करता था, कमिटेड भी था चीजों को लेके। सो दैट्स हाउ दिस वाज द जर्नी ऑफ शेकल्टन, जो मैंने आपसे शेयर करी। क्या क्लिक करा आपको ये जर्नी देख के? कुछ क्लिक करा, कुछ आपको समझ में आया, या कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो इट्स ओपन, आप ऑडियो पे भी आ सकते हो, आप चैट पे भी डाल सकते हो। क्या लगा आपको इसको सोच के, समझ के? जैसे हमने बात करा ना, आज की डेट में सिचुएशंस कितनी क्रिटिकल हो गई हैं, एआई आ रहा है, टफ सिचुएशंस आ रही हैं, आइसबर्ग की तरह है, आप समझो। इसकी सिचुएशन जो है ना, जब जब ये चल रहा था शिप, स्मूथ 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद जैसे जैसे अंटार्कटिका में बर्फ के पास पहुंचते गए, इनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो गया। इनको दिख तो रहा था कि बर्फ है, इनको समझ में तो आ रहा था, एक दो लोगों ने इनको, एक दो शिप्स ने इनको आगाह भी करा कि भाई मत जाओ आगे, बर्फ के बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, डोंट गो देयर। बट ये चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और एक स्टेज ऐसी आई जब धीरे 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 ये बिल्कुल ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे डेडलॉक आ गया।
आज सिचुएशन वही है, धीरे धीरे दिख रहा है, ऑफिस की सिचुएशंस चेंज हो रही है, सराउंडिंग्स चेंज हो रही है, लोग कंपनीज का जो हायर करने का तरीका है वो चेंज हो रहा है, यंग जनरेशन को दे आर हायरिंग, सिचुएशंस आर चेंजिंग, विजिबल है सब कुछ। बट हम कब तक वेट करना चाहते हैं जब तक हम हमारा शिप डेडलॉक में ना चला जाए, वो हमें डिसाइड करना है। या सो शेयर, क्या लगा आपको ये केस स्टडी देख के, कैसा आपको समझ में आया, कुछ क्लिक करा, व्हाट क्लिक्ड यू फॉर योरसेल्फ? यस। सर शशांक हियर, वन थिंग, अगर मैं कैप्टन शैकल्टन से कंपेयर करूं अपने आप को, आई थिंक आई हैव जीरो इमोशनल response, whereas Captain Shackleton was bulletproof in terms of facing anxiety, in terms of facing the challenges, gloom and doom. He could control his emotions, not only his emotions, but he had to control the motivation of all his entire team also. And ये तो physical dangers है, and still, I mean, hats off to him that he was able to keep his mind calm. And even there was lack of sleep, no food, water, हमारे पास तो फिर भी वो सब है, हाँ, plus the problem. So that is something that I think I really means I'm like literally zero in front of that person when it comes to mind control. And current situation में I think mind का और emotions का control करना ही यस 80% है, and वो gloom and doom और वो depressive tendency में जाना बहुत easy है आज के डेट पे. So that is one thing that I want to improve. गुड गुड, थैंक्स फॉर शेयरिंग। आई थिंक बहुत बिगेस्ट पॉइंट आपने पिक करा है कि आज की डेट में माहौल बड़ा अजीब सा हो गया, ग्लूम हो गया। आप देख रहे हो, एक नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा हो गए। एक आदमी एक न्यूज देता है, यार वहां 4 लोग चले गए, उधर से हटा दिया, नेगेटिव बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है। जब नेगेटिव बहुत ज्यादा फ्लो करता है तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि हम कहाँ जा रहे हैं वो समझना, हम कितने इमोशनली स्ट्रांग है वो समझना, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना। क्योंकि उसका माइंडसेट स्ट्रांग था, क्योंकि वो पॉजिटिव था, वो निकाल के ले गया टीम को। एक भी, आप सोचो 2 साल के अंदर इतनी टफ सिचुएशन में एक आदमी भी नहीं मरा, किसी के साथ कोई सिचुएशन नहीं आई। सिर्फ 1% ऐसा होता है जिसके लेग्स में सेप्टिक हो जाता है, जिसका उनको लेग काटना पड़ता है, अदरवाइज किसी के साथ कोई कोई दिक्कत नहीं आई। कितना बड़ा एक इवेंट था। और मैं आपको कहता हूँ, ये जो स्टडी है ये हार्वर्ड के अंदर सिखाई जाती है लीडर्स को, जो टॉप लीडर्स होते हैं। ये वहां पर, मैं तो एक सेशन मैंने आपके साथ कर लिया, बट ऐसी काफी सारी केस स्टडीज मैं भी अपने क्लाइंट के साथ करता हूँ जो एक सीनियर लेवल पे होते हैं, ताकि उनको मेंटल टफनेस समझ में आए कि मेंटल टफनेस होती क्या और लोग कैसे कैसे करते हैं। तो यही तो रियल लाइफ के सिनेरियोज होते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हम छोटी छोटी चीजों से, मेरी टीम के पर्सन ने ऐसा बोल दिया, वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, अरे बॉस आपको आपको बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। आप जब बड़े बन जाओगे तो आप चीजों को सॉर्ट आउट कर लोगे। वही ये सिखाता है। इस स्टोरी को आप दोबारा से देखना, अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है, इसकी बुक भी है, देख के समझना और डीपर एस्पेक्ट्स में जाओगे, इट विल ओपन योर आईज। रियली बहुत बहुत, मेरे को तो बहुत लर्निंग्स मिली है इससे, और मैंने अपनी लाइफ में इसकी काफी चीजों को अप्लाई करा है। और मेरे काफी सारे सीनियर क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इसकी चीजों को अप्लाई करके ट्रांसफॉर्मेशंस करी है अपनी टीम के अंदर। सिर्फ एक यही केस स्टडी बोल रहा हूँ, यही केस स्टडी इतनी पावरफुल है, ऐसी तो कई सारी केस स्टडीज हैं, बट यही केस स्टडी इतनी पावरफुल है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी। एंड थैंक्स तो शशांक, थैंक्स फॉर शेयरिंग। यस, Pleasure, sir. एनीबडी एल्स हैज एनी लर्निंग्स? क्या क्लिक कराया, कैसा रहा? यस, हाँ जी, कुछ आया, मतलब क्लिक करा नहीं करा? जस्ट थोड़ा सा ओपन तो करो, राइट ऑन योर चैट, अदरवाइज जस्ट ओपन। एक एक और हम फीडबैक लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो भुवन जी। हाँ जी, या जाके, हाँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, यू आर। हाँ हाँ। सी जैसा भी सिचुएशंस रहे, हम लोग हमारा जो माइंड एक फोकस पे लेके चलना है, जो एम करके उसको अचीव करने के लिए जो भी हम लोग एक्शंस लेना है, उसको वर्कआउट करते जाते ही रहना, तरक्की होने के लिए। वो एक दैट्स द थिंग। यस, कि दो चीजें जो आपने बोला उसमें आई विल गिव यू 2 पॉइंटर्स। फर्स्ट इज कि सी, जो आपका गोल था वो अभी प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल और नॉट, कीप रिवाइजिंग योर गोल्स, कीप चेंजिंग देम।
if required, if the conditions are not suitable. That is one. And yes, mental toughness आज की डेट में खत्म हो गया है, वही हमें लेके आना है. मेंटल टफनेस इज दी, वो न तो आज की डेट में लोगों के अंदर है और बच्चों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है. मतलब वो बिल्कुल खत्म हो गया. चलो हम तो फिर भी थोड़ा हैंडल कर लेंगे, बट आज की जो यंग जनरेशन है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. तभी तो आप देखोगे ना, यंग जनरेशन में कितने सुसाइड्स होते हैं, बच्चे हैंडल ही नहीं कर पाते. दे आर नॉट एबल टू हैंडल दीज टफ सिचुएशंस. जबकि ये स्टोरी से ही हमें मॉरल हाई करके आगे बढ़ने का मौका मिलता है. हमें उसको लेके आगे चलना चाहिए. सो यस, यू राइटली मेंशन कि mental toughness is the one thing that's an asset. If you have that mental toughness with you, more than money, that will help you more than anything. Mental toughness is going to save you in your career, in your life. And think like a leader. If you are a leader, if you are a leadership role, many of you are, think like a leader. Think like कि ट्रस्ट मेरे को बिल्डअप करना है. एंड थिंक लाइक शेकल्टन. कुछ ट्रेड्स वहां से लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज देयर. परफेक्ट है. सो ये एक पार्ट था. अब मैं कुछ आपको, एक तो मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको कुछ और एक मेंटल मॉडल्स पे, हाँ, आज हम बात करेंगे. जो मॉडल्स होते हैं दोस्त. सो मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं और मेंटल मॉडल्स पे विल बी डिस्कसिंग. Yes. Mental mind models. Mental models are for you to think better, decide faster and rise higher. अभी जो मैंने आपको जो भी एक सिचुएशन दिखाई है, जो एक स्टोरी दिखाई है, एक रियल स्टोरी, उसी के को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए these mental models are there. So mental models are basically thinking frameworks and they help you interpret situation and make better decisions. They are like Google Maps for your brain. ये आपके ब्रेन के लिए गूगल मैप्स होते हैं. एंड दे आर लाइक lenses. If distorted, your view of reality is to will get distort. तो ये lenses होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे अपने करियर को आगे लेके जाना है. सो मेंटल मॉडल्स, दे आर थिंकिंग फ्रेमवर्क्स कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप किसी इशू के बारे में सोचोगे. तो मेंटल मॉडल्स तो काफी हैं जो जिसके बारे में मैं बात करता हूं, बट कुछ दो तीन जो हैं बड़े क्रिटिकल हैं, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, जो आपको प्रेजेंट सिचुएशन में हेल्प करेंगे. फर्स्ट इज वाई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल स्टे स्टक. अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स क्यों स्टक करते हैं. फर्स्ट इज कांस्टेंट सेकंड गेसिंग, लो विजिबिलिटी, डिलेड कॉन्वर्सेशन, ठीक है ना, ओवर थिंकिंग, फीलिंग पावरलेस डिस्पाइट हार्ड वर्क. ठीक है ना. आप में से कुछ लोगों ने वो जो रीवायर प्रोग्राम ज्वाइन करा है, वो इसी के ऊपर है. बहुत बार क्या है कि हम जब सोचते ज्यादा है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन ऑन अ थिंकिंग मोड ओनली. वो थिंकिंग वाले लेवल पे ही दे आर ऑपरेटिंग. सो प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है. और दूसरा, हम ऑलवेज फाइंड आउट फॉर द सेकंड ऑप्शन कि अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, जिसकी वजह से चीजें डिले होती हैं. ठीक है ना. सो थिंकिंग एक आर्ट है, कैसे थिंक करा जाए, हाउ टू थिंक. मेंटल मॉडल्स हेल्प देयर. कॉर्पोरेट के पेन पॉइंट्स क्या हैं. सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, आई डू द वर्क बट गेट नो क्रेडिट, मतलब विजिबिलिटी गैप. आई फियर रिएक्शंस, मतलब इमोशनल इंटरफेरेंस. ऑलवेज फायर फाइटिंग, मतलब नो क्लैरिटी, हमेशा बस फायर फाइटिंग में काम कर रहा हूं. ओवर एनालाइजिंग, नो डिसीजन मॉडल, कोई डिसीजन का मॉडल ही नहीं है. नो बडी हैज टॉट पीपल कि आप कैसे डिसीजन लो. लाइफ में डिसीजन के मॉडल्स है ना, कई सारे मॉडल्स होते हैं जिसको आप कंसीडर करके डिसीजन लेते हो. वो मॉडल्स अगर इवॉल्व नहीं होते हैं तो चैलेंज आता है. लोग पूछते हैं मैं जॉब छोड़ दूं या जॉब कर लूं. अगर आपके पास मेंटल मॉडल्स होंगे ना, तो आप उसको अगर फिट करोगे चीजों के हिसाब से, तो गेम शिफ्ट हो जाता है. तो वी कॉल देम एज अ मेंटल मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग. तो वो थोड़े एडवांस रहते हैं, जो हम कवर करेंगे रिवायर के अंदर, बट वो एडवांस मॉडल रहते हैं कि थिंक कैसे करना है, हाउ टू थिंक. ठीक है. सो ओवर एनालाइजिंग, नो डिसीजन मॉडल, डोंट स्पीक अप. एक होता है कि दे डोंट स्पीक अप, प्ले स्मॉल, मेंटल स्क्रिप्ट चलती रहती है कि यार हमें ज्यादा नहीं बोलना. मेंटल स्क्रिप्ट चल रही है, ज्यादा बोलोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्यों बोलना है. ओवर एनालाइजिंग, ये कुछ 5 तरह की प्रॉब्लम्स
होती हैं जो लोग एनकाउंटर करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में एनकाउंटर करते हो? तो जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं थ्रू विच यू आर पासिंग आउट, और विच यू फेस इन योर डे टू डे कॉर्पोरेट लाइफ। First is visibility gap, as I mentioned. Second is emotional interference. Third is no clarity filter. Clarity filter नहीं है. Fourth is no decision model, and fifth is your play small, और छोटा छोटा ही करो, चुपचाप बैठे रहो, अपना काम करो. So just comment on the comment box. यार कौन सी प्रॉब्लम से you are passing through? Yes. ठीक है. सो जैसे आपने बोला, डोंट स्पीक अप, नो क्लैरिटी फिल्टर, डोंट स्पीक अप. ठीक है, स्पीक अप नहीं करते हो. उसके ऊपर मैं आपको एक न्यूटन्स मॉडल बताऊंगा. ठीक है, सो उस पर हम काम करेंगे. पहला मॉडल है द लैडर ऑफ इन्फ्रेंस. तो ये एक मॉडल है, मेंटल मॉडल है, हाउ आवर माइंड्स लीव फ्रॉम फैक्ट्स टू रिएक्शन एंड हाउ टू क्लाइम डाउन. कि हमारा जो माइंड है कैसे फैक्ट्स और को रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं हम. तो मैं एग्जांपल के थ्रू आई एम गोइंग टू टेक यू. वी कॉल्ड दिस मेंटल मॉडल एज अ लैडर ऑफ इन्फ्रेंस. ठीक है, थीम क्या है? लैडर ऑफ इन्फ्रेंस मॉडल 1, इसमें हम बात कर रहे हैं. बेसिकली ये डेवलप्ड बाय हार्वर्ड प्रोफेसर क्रिस ने करा था, पॉपुलराइज बाय पीटर सेंगे. द फिफ्थ डिसिप्लिन की बुक भी है. इसके अंदर इन्होंने काफी डिटेल्ड में बताया हुआ है कि लीडरशिप की के में क्या क्या कीज होती हैं एंड हाउ यू कैन सेपरेट डिफरेंट स्टेप्स. ठीक है, जैसे यहां पर बात है कि थीम है हैंडलिंग इमोशनल हाईजैक. लैडर ऑफ इन्फ्लुएंस जब काम करता है, जब हमें इमोशनल हाईजैक मैं हो रहा हूं, मतलब मेरे बॉस ने मुझे कुछ बोला नहीं बोला, मैं इमोशनली ड्रेन हो रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एन हाईजैकिंग ऑफ योर इमोशंस. इसमें क्या होता है? वी जंप फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू रिएक्शन बेस्ड असम्पशन. कि मैंने कुछ ऑब्जर्व करा और मैं इमीडिएटली रिएक्शन बेस पे आ गया. कुछ भी ऑब्जर्व कर लिया और मैं रिएक्शन बेस पे आ गया. ठीक है ना? एग्जाम्पल, बॉस एंग्री. मुझे लगा बॉस ने मुझे मेरे को कोई बात बोली, तो मेरे को लग रहा बॉस इज एंग्री, बॉस मुझसे नाराज है. एंड यू विड्रॉ थिंकिंग इट्स योर फॉल्ट, और आप एकदम से सोचना शुरू कर देते हो कि ये तो आपका फॉल्ट है. ठीक है ना? बट स्टोरी क्या थी? स्टोरी क्या था? आपका जो बॉस है, से वीपी, वाजंट इग्नोरिंग यू, ही वाज ओवरलोडेड. वो ओवरलोडेड है, वो इग्नोर नहीं कर रहा है. पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? ऑब्जर्वेशन. अभी लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां पे काम कर रहा है? जब आप इमोशनली हाईजैक हो जाते हैं. ये सिचुएशन बहुत बार आती है. हमें लग रहा है वो ऐसा सोच रहा है, वो ये सोच रहा है, वो सोच रहा है. मेनी टाइम्स दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कम इमोशनल हैंडलिंग इमोशनल हाईजैक. सो रिएक्शन बेस्ड ऑन असम्पशन. ठीक है ना? सो यू विल ड्रॉ थिंकिंग इट्स योर फॉल्ट. अभी करना क्या है? जैसे मैंने बोला, देखो आज का सेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई रिवायर प्रोग्राम. तो मैं आपको जो काफी सारी चीजें बता रहा हूं वो इस लेवल में बता के लेके आ रहा हूं. ऑल्दो कहीं पे भी पार्ट नहीं है जो हमने डिसाइड करा है मैग्नेटिक प्रोफेशनल के अंदर, बट आई एम जस्ट टीचिंग यू कि ये मेंटल मॉडल्स अगला लेवल है. आपको समझ में आना चाहिए कि आपका अगला लेवल क्या है, अगले लेवल पे मुझे कहां जाना है, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर विच कम्स अंडर नेक्स्ट लेवल, क्या है स्ट्रक्चर, क्या होता है. और जो हार्वर्ड और एमआईटी ये जो लोग होते हैं, वहां पर किस तरह की थ्योरीज चलती हैं, या जो सीटीओज होते हैं, सीईओज होते हैं, उनको किस तरह से ट्रेनिंग मिलती है, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं थ्रू मेंटल मॉडल, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो कि जो अभी तक आपने सीखा है वो लेवल 1 है. इसके ऊपर भी कितना कुछ पड़ा है. अगर आपको रियल लीडर बनना है तो आपको कितना कुछ ट्रांसफॉर्म करना है अपने अंदर. सो जैसे मैंने बोला डेवलप, ये तो आपको मैंने बता दिया है. ये एक 7 रक्स, मतलब एक बेसिकली 7 स्टेप्स आप कह सकते हो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ये मॉडल ये कहता है 7 स्टेप्स होते हैं. पहला होता है ऑब्जर्व डाटा. पहला स्टेप ये कहता है कंक्लूजन में मत आओ. सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो डेटा, रॉड फैक्ट को इकट्ठा करो. बॉस मुझे ऐसा देख रहा है, कल बॉस ने मुझसे बात नहीं करी, ठीक है ना, बॉस उसको तो तारीफ कर रहा है, बॉस ने ऐसा कर दिया. तो ऑब्जर्व, फाइंड आउट द ऑब्जर्वेबल डेटा, दैट इज 1. सेकंड, सेलेक्ट डेटा.
क्या आपने डेटा फाइंड आउट करा है, उसमें से जो काम का है उसको सेलेक्ट करो। थर्ड इज ऐड मीनिंग दो उसको, कि कल्चरल पर्सनल, कि जो मैंने डेटा लिया है कि बॉस उसके साथ ऐसा कर रहा है तो क्या सबके साथ ही ऐसा कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, कब से ऐसा कर रहा है, उसको मीनिंग देना है। हमने क्या करना है, मीनिंग देना है, मीनिंग देते हैं। फिर मेक अजम्पशंस, मतलब ये क्या होता है, पहले हमने फैक्ट लिया, फिर हमने डेटा को सेलेक्ट करा, फिर हमने उसको मीनिंग दे दिया, फिर हमने अजम्पशंस बनानी शुरू कर दी कि बॉस ने ऐसा ऐसा करा तो ये बात होगी, बॉस ने ऐसा ऐसा करा तो ये होगा, वो अजम्पशन बनानी शुरू कर दी। वहां से क्या होता है, कंक्लूजन्स पे आ गए और मेरा बिलीफ बन गया और मैं वैसे ही एक्शन लेना शुरू कर रहा हूं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्या था, इमोशनल हैंडलिंग, इमोशनल बेसिकली रिएक्शन बेस्ड ऑन अजम्पशन, कि मैं जो भी रिएक्शन मैं कर रहा हूं अजम्पशन पे कर रहा हूं। तो यूजुअली ये 7 स्टेप्स होते हैं जब आदमी कोई एक रिएक्ट करता है। तो पहले वो डाटा पे काम करता है, बॉस ने ऐसा देखा बोला मुझसे बात नहीं करी, डेटा में से कुछ काम की बातों को सेलेक्ट कर लेता है, फिर अपना एक मीनिंग दे देता है, अपना एक मीनिंग दे देता है, मतलब कि शायद ऐसा होगा, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, शायद मेरी प्रमोशन ना हो, वो मीनिंग दे रहा है। मीनिंग के बाद वो अजम्पशन बना लेता है, ऐसा ही होगा, यही चल रहा है, फिर उससे वो कंक्लूजन निकालता है, फिर वो बिलीव बन जाता है 3 मंथ 6 मंथ के अंदर, यार मेरा बॉस तो मुझे पसंद ही नहीं करता है, और वो एक्शन लेता है उसी के हिसाब से, छोड़ो बेकार है, मैं भी क्यों काम करूं, जॉब छोड़ो, आगे बढ़ो, बाहर निकलो, दूसरे प्रोफाइल में जाओ। दैट्स हाउ पीपल टेक डिसीजंस। ओके, अभी क्या है, जैसे ऑब्जर्वेबल डेटा, ठीक है, ऑब्जर्वेबल डेटा क्या हुआ, ऑब्जर्व डेटा था बॉस वॉक्ड बाई, नो आई कॉन्टैक्ट। अब मेरा इनर मोनोलॉग क्या चल रहा है, इनर चैटिंग क्या चल रही है, मैंने सेलेक्ट डेटा करा, नोटिस फ्रोन, कि बड़े अजीब तरीके से मुझे मतलब देखा ही नहीं है, ठीक है ना। एड मीनिंग, ही लुक्स अनॉयड, मुझे अनॉय लग रहा था, निकला जैसे तो मुझे अनॉयड लग रहा था। अजम्पशन, ही इज अनॉयड विद मी। अब मैंने, वो मुझे अनॉयड लग रहा था तो मैंने अजम्पशन क्या बना ली, ही इज अनॉयड विद मी। कंक्लूजन, रिपोर्ट मस्ट बी रॉन्ग, मतलब मैंने जो बॉस को रिपोर्ट दी है, या 2-3 दिन पहले जो मैंने काम करा था, बॉस ने उसको गलत तरीके से ले लिया है, या मैंने बॉस को कुछ जब बात करी किसी इशू के बारे में तो बॉस हैज टेकन इट रॉन्गली। बिलीव, आई एम अंडर वैल्यूड हियर, यार मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मैंने तो बॉस को एक बात बोली थी, बॉस ने तो मेरे को देखा ही नहीं, और वो मुझसे, मुझे लग रहा है एनॉयड है, और मैंने, मेरी रिपोर्टिंग गलत है, तो फिर आप विड्रॉ करोगे, आप आइडियाज ही नहीं दोगे। आप समझे, कहां से हुआ, बॉस को एक आइडिया दिया इस पर्सन ने, और पूरा उसने ये सारा का सारा फ्रेमवर्क बना लिया। लैडर, वी कॉल्ड इट एज लैडर, लैडर में आप चढ़ते चले गए। ये लाइफ में भी ऐसे होता है, बॉस के साथ भी ऐसे ही होगा, लाइफ में भी ऐसे। व्हाई इट हर्ट्स टीम्स, ठीक है ना, व्हाई डज रिएक्टिविटी इरोड्स ट्रस्ट, वी एक्ट ऑन, बेसिकली क्या होता है, कुछ भी बॉस एक्टिविटी कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी जहां पर मुझे विजिबिलिटी नहीं मिल रही, वो मेरे ट्रस्ट को खत्म करता है। हम स्टोरीज पे काम करते हैं, फैक्ट्स पे काम नहीं करते, हम स्टोरीज पे काम करते हैं, और हम हैप्पी रहते हैं मिस अलाइनमेंट को ग्रो ज्यादा करते हैं, और हम साइलेंट डिसएंगेजमेंट बिलीव करते हैं, यार बॉस मुझसे बात नहीं कर रहा, बॉस ने मेरे को जवाब नहीं दिया, बॉस ने मेरे पॉइंट्स पे टिक नहीं मारा, तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी शांत रहूंगा, मैं भी बार बार बॉस के पास नहीं जाने वाला, मैं भी शेयर नहीं करने वाला। आपको करना क्या है, यूजुअली ऐसा आप लोगों के साथ होता है, होगा, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ऐसा होता ही है। आपको क्या करना है, आपको क्लाइम डाउन इन 4 स्टेप्स। आप जो भी आप लैडर चढ़ गए हो ना, पहला लैडर, दूसरा लैडर, तीसरा लैडर, चौथा लैडर, तो आप 7 स्टेप्स चढ़ चढ़ गए, अब 7 में से 4 वापिस आ जाओ, पॉज करो, व्हाट डिड आई एक्चुअली ऑब्जर्व। पॉज क्या करना है, मैंने ऑब्जर्व क्या करा, मैंने ऑब्जर्व करा क्या, प्रोब, व्हाट स्टोरी आई एम एडिंग, मैं क्या स्टोरी ऐड कर रहा हूं, व्हाट इज द स्टोरी दैट आई एम एडिंग। थर्ड, वेरीफाई, आस्क फॉर डेटा ऑन देयर व्यू, चलो मैं किसी और से पूछता हूँ क्या उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्या बॉस बिजी है, क्या कुछ और चीज चल रही है। एंड दिस हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम,
बहुत बार लोग कहते हैं मेरा बॉस ऐसा कर रहा है, मेरा बॉस मुझसे बात नहीं कर रहा, बॉस ऐसा सोच रहा है, बॉस वैसा सोच रहा है, वो एकदम से वो 7 लैडर चढ़ जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब मैं उनको फिर सॉल्यूशन देता हूँ ना, आप ऐसा करो, चलो बॉस से एक क्वेश्चन पूछो, फिर खुद ही कहते हैं नहीं बॉस तो कह रहा है, बॉस ने तो अपनी प्रॉब्लम बता दी, बॉस कह रहा है यार मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँ, या वो खुद बता रहे हैं कि यार मैं ओवरलोडेड हूँ, या मुझे कुछ और करा जा रहा है। मतलब इग्नोरेंस का रीजन बॉस ये पर्सन नहीं था, कुछ और रीजन था, पर मैंने लेटर पे चढ़ गया। So ask for data of the or their view and reframe. बाद में रिफ्रेम करो, जो मैंने सोचा था वो नहीं था, वो ये था, वो ये नहीं था, वो ये था। सो क्लैम डाउन इन द इन स्टेप्स। सो दिस इज लेटर। सो ये डेली प्रैक्टिसेस आपको करनी है। आप डेली क्या करना है, कैप्चर वन लैडर जंप। आज आपने किसी के बारे में कोई परसेप्शन बनाया, आज आप इमोशनली ड्रेन हुए, तो एक लैडर बना दो, बनाने की कोशिश करो। जैसे ये लेटर बनी है ना, इसको क्या ऑब्जर्वेबल डाटा क्या था, ये था, फिर मैंने क्या सेलेक्ट करा, फिर मैंने उसको मीनिंग क्या दिया, फिर मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, फिर मेरे बारे में मेरा क्या बिलीव बन रहा है, और फिर मैंने एक्शन क्या लिया। ये ऑब्जर्वेबल डाटा है, इस पे काम करना। तो ये एक डेली, आप डेली एटलीस्ट एक इमोशनल लैडर पे आप काम करो। फिर फैक्ट करो, चेक फैक्ट्स बिफोर फीलिंग। फीलिंग मत ऐड करो उसमें, फैक्ट ऐड करो। ये नहीं कि यार बॉस ऐसा सोच रहा है, नहीं, मैं पहले फैक्ट ऐड करूंगा, ऐड फैक्ट्स। देन बडी सिस्टम, स्वैप लेटर। स्वैप बडी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप अपने किसी और कलीग के साथ भी उस सिचुएशन की लैडर को स्वैप करो। क्या भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्या कुछ ऐसा तुमने देखा है, क्या कुछ तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे लैडर्स को स्वैप करो। जब आप ऐसे लैडर्स को स्वैप करोगे, आपको समझ में आएगा कि औरों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो कुछ डेली माइक्रो प्रैक्टिसेस आपको करनी है टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। ये मेमोरी हुक है। मेमोरी मतलब आपको रिकॉल करने का हुक है। सी, सेलेक्ट, स्टोरी, रिएक्ट। पहले देखो, फिर सेलेक्ट करो, फिर स्टोरी क्या है, फिर रिएक्ट करो। बेसिकली स्लो द जंप बिटवीन स्टोरी एंड रिएक्ट। मतलब क्या हुआ इसका, डोंट क्लाइंब द लैडर टू फास्ट। तो मेरे को पहली बात, जल्दी कंक्लूजन नहीं निकालने हैं, मेरे को लैडर पे जल्दी नहीं चढ़ना है, मेरे को बिलीफ नहीं बनाने हैं। सी, जो मैंने देखा उससे जो मैंने रिएक्ट करा, उसमें स्टोरी जो मैं ऐड कर रहा हूं, देखा और जो मैंने सेलेक्ट करा वो दोनों तो ठीक है, वो तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, बट जो मैंने स्टोरी ऐड करी, जो मैंने मीनिंग ऐड करा, जो मैंने अजम्पशंस ऐड करी, उसको रिएक्ट करने से पहले 2 बार सोचना है। जब आप ये काम करोगे, तभी आप अपने ये जो इमोशनल चीज है ना, क्या कहते हैं इसे, हैंडलिंग इमोशनल हाईजैक को आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो दिस इज कॉल्ड एज लेडर ऑफ इन्फ्रेंस। होप यू गॉट दैट। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर दिस। क्या क्लिक करा, क्या समझ में आया, आपके साथ ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा, जस्ट शेयर। दिस इज लेडर ऑफ इन्फ्लुएंस। एनीथिंग यू वांट टू नो, कुछ आपको क्लिक समझ में आ रहा है या कुछ समझ रहा है, अदरवाइज आई Sir, विल। I can totally relate to this. हाँ, This is completely my story because my boss actually does not give any feedback. She does not connect that much, and बिल्कुल कोई mentoring कुछ भी नहीं आती। तो हम्म, हमारी टीम के पास एक ही तरीका है, उनके बिहेवियर को और वर्ड्स में के ओवर रीड करो, रीड बिटवीन द लाइंस करो, एंड ट्राई टू काइंड ऑफ मेक अ स्टोरी लाइक यू said. हम्म, And lot of mood swings. Some days she will react normally. Some days she'll cut you when you're speaking. तो फिर लगता है कि okay, she's cutting when I'm speaking means maybe I'm not important. Maybe she's thinking taking some action. Yeah, I'm not valuable anymore. ऐसी stories बनने लगती हैं. So I think this is exaggerated by the fact that कोई regular feedback, structured feedback नहीं मिलता. हम्म। हाँ, कभी आप जबरदस्ती पूछो तो कहोगे हाँ जी, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, you're doing great. But behavior and dynamics tell otherwise. So yes, it's a takeaway for me to kind of gather data and give a lot of benefit of doubt and pause before reacting. ओके, So this is very useful that way. परफेक्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, देखो इसमें मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो लेटर है ना, ये जो बनाई हुई है,
ये लैडर को आप दिमाग में बैठा लो कि मैंने डेटा तो देख लिया, सेलेक्ट डेटा, ऐड मीनिंग। ये देखो, ऐड मीनिंग, अजम्पशन, कंक्लूजन, बिलीफ, ये चारों आपके एक्शंस हैं, और ये हम्म, चारों बनते हैं जो आप डेटा पिक कर रहे हो। तो पहले कोई भी कंक्लूजन बनाने से पहले देख लो, क्या मैं लैडर में ऊपर तो नहीं चढ़ गया ज्यादा। मतलब आज के बाद आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो ये मॉडल आपके लिए है। जब भी आपको लग रहा है आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, बॉस से, कलीग से, हस्बैंड वाइफ, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उसमें, फैमिली मेंबर्स के साथ, आप कुछ भी कंक्लूजन अगर निकालो, बिलीव निकालो, तो पहले आप सोच लो मैं लैडर चला चढ़ा कैसे। आज के बाद आपको लेटर याद आनी चाहिए, मैं लेटर कैसे चढ़ा, और मैं 3 स्टेप या 4 स्टेप नीचे उतर के देखता हूँ लेटर के अंदर, फिर मैं डिसाइड करता हूँ, फिर वहां से रियलिटी को फाइंड आउट करता हूँ। ये मॉडल है, मॉडल मेंटल, मतलब ये मेंटल मॉडल आपको याद करना है कि मैं आज के बाद कुछ भी अगर कंक्लूजन पे आऊंगा तो पहले ये चीज करूंगा। अगर आप इसको रियली में अप्लाई करोगे ना, बहुत आपकी लाइफ में बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि वो बहुत जल्दी कंक्लूजन बना लेते हैं। सो दैट्स द थिंग, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। सर एक चीज क्लैरिटी चाहिए। मैंने एक थोड़ा अप्रोच अपनाया है, मैं आपसे वैलिडेट करवाना चाहता हूँ। तो आई हैव स्टॉप्ड रिएक्टिंग इमोशनली। पहले मुझे बुरा लगता था, अभी भी लगता है, बट मैं, एक होता है ना कि आई एम इन माई रोल, शी डज नॉट नो मी एज अ पर्सन, वी आर इन अ रोल, वी आर वेयरिंग अ आई कार्ड, राइट? So I will keep doing my duty. I will keep doing whatever my SLAs are, the statement of work is, irrespective of, जैसे इमोशनल इमोशंस को साइड रख के जो ड्यूटी है उस हिसाब से मैं कंटिन्यू करता हूँ। इफ द गुड आइडियाज, एनीथिंग कंट्रीब्यूट करना है, जैसे करना है, irrespective of circumstances, आई एम कंटिन्यूइंग टू डू व्हाट इज सपोज टू बी डन। इमोशंस को मैंने साइड कर दिया है। तो डू यू थिंक इट्स अ गुड अप्रोच? देखो, पहली बात यह है कि आपको डेफिनेशन पता है हु इज अ प्रोफेशनल? प्रोफेशनल कौन होता है आपके तरफ से, कौन है? प्रोफेशनल वही है, somebody who does his duty as per the defined SLAs, and who, who's good at his work, and who delivers results. ठीक ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है हमारा रोल क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं। अभी एक सीन है, अमिताभ बच्चन अपने घर से निकलते हैं रोज सुबह, ठीक है, जाते हैं, आज उनको 3 मूवी की शूटिंग करनी है। एक में जाते हैं हस्बैंड बन जाते हैं, एक में जाते हैं किलर बन जाते हैं, एक में जाते हैं किसी के दादा बन जाते हैं। घर आते हैं तो घर आके तो वो ह्यूमन अमिताभ बच्चन ही है ना। 3 जगहों पे वो 3 अलग अलग नामों से जिंदगी जी रहे हैं, पर घर आके तो न्यूट्रल है ना। आप भी तो वही Right, कर रहे हो, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। सो हु इज अ right. कॉर्पोरेट प्रोफेशनल? कॉर्पोरेट प्रोफेशनल मीन्स इज समवन हु गेट पेड टू अप्लाई अ स्पेशलाइज, उसको ना अपना एक स्पेशलाइज नॉलेज, उसको उसके आपके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज है, आपके पास एक स्पेशलाइज स्किल है, ठीक है ना। तो आप अपनी स्पेशलाइज नॉलेज और स्पेशलाइज स्किल को अप्लाई करने के लिए कंपनी के अंदर आए हो, और आपको कॉम्पिटेंटली उसको अप्लाई करना है, बस खत्म। इसके अंदर इमोशंस तो कहीं है ही नहीं। नहीं सर, इमोशंस मैं बताता हूँ कहाँ आता है। एक्चुअली मेरा रोल जो है ना, इट इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक रोल कि आपको एक ही काम करना है रोज। तो देर आर मेनी प्लेसेस वेर आपको अपनी एक्सपीरियंस और डिस्क्रिप्शन यूज करके एक सोल्यूशन डिजाइन करके लेके आना पड़ता है। हम्म, एंड माई बॉस अनफॉर्चुनेटली इज नॉन टेक्निकल। हम्म, So one of the feedback from other senior colleagues under her, they मतलब on a very friendly note, they told me that she thinks you confuse her with technical jargon and avoid responsibilities. हम्म, वो टेक्निकल जहाँ पे शुरू, बिकॉज शी इज नॉट टेक्निकल, एंड समटाइम्स ना चाह के भी थोड़ा तो आपको कंस्ट्रेंट समझाने के लिए टेक्निकल होना पड़ता है। तो हम्म। वहां पे शी विल कट मी, और शी विल काइंड ऑफ से मेरे को समझ नहीं आ रहा, शी विल ब्लंटली से मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो अब बार बार डिस होने की वजह से थोड़ा सा लगता है कि यार मेरी बॉस मुझे भी सुनती नहीं है। पर अल्टीमेटली ठीक है, अपना एटीट्यूड मैं चेंज नहीं करता। आई स्टिल, थोड़ी देर थोड़ा बुरा लगता है, फिर बाउंस बैक हो जाता हूँ, एंड आई कंटिन्यू टू डू व्हाट आई डू, ईमेल पे या किसी और के थ्रू, और जो है उसको दूसरे फोरम्स में एक्सप्लेन करो, तो अल्टीमेटली उनको समझ आता है बहुत लेट बाद। तो बट एक होता है ना कि वार्म ट्रीटमेंट, वो वार्मथ नहीं है। And one of my other senior colleagues told me that at this point, Shashank, you don't expect mentoring beyond a stage in the career. So I don't know if that is true or not. I don't know if VPs or senior VPs also get mentored, or are they on their own? या junior levels को ही mentoring की जरूरत पड़ती है? Because as human beings, I think हर level पे जरूरत पड़ती है, but I don't know. So at least मैंने अपनी attitude, अपने emotions control में लाके जो है मैं वो करता हूँ, एंड उनको थोड़ा धीरे समझ आता है, बाद में समझ आता है। तो वो प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है मेरा। देखो, जो आपने बोला ना, मैं आपको बहुत बार जैसे सेशन में बोलता हूँ कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स इमोशनल बॉम्ब्स हैं, ठीक है ना। हम्म, सारे इमोशनल बॉम्ब है, हर आदमी इमोशंस से भरा पड़ा है। आप किसी को कहते हैं ना, एक गुब्बारा होता है, बैलून को आप हल्का सा वो मारोगे, सुई मारोगे, फट जाएगा।
ठीक है। आज की डेट में अगर आप किसी को भी सुई मारते हो तो आप फटेगा, वो फटेगा, पक्की बात। ठीक है। तो आपको ये देखना है, कई बार कुछ बैलून हो सकता है जो हैंडल कर जाते हैं, 3 4 भी बार करोगे वो हैंडल कर जाएंगे, कुछ पहली बार में फट जाएंगे, पर एवरीबडी इज इमोशनली फुल, वो फुल हो चुका है। तो आज के दिन में देखो, मैंने वही आपको बात बताई ना कि आप एक एक्टर की तरह सोचो, आप एक्टिंग करने गए हो तो इमोशंस करेक्ट। भी, एक्टिंग करने गए हैं वहां पे, भाई पैसा मिल रहा है, प्रोफेशनल आदमी हूँ, आप बताओ जो जो तुमको पसंद है वही बात करेंगे, नहीं पसंद टेक्निकली तो नहीं बात करेंगे। बट यस, पॉइंटर में लगा दूंगा, स्टिक लगा दूंगा कि दिस इज द टेक्निकल थिंग विच माइट कम इन फ्यूचर। मैं जैसे हम अपने बॉस के, कई बार ऐसा होता था तो हम लगा देते थे कि भैया, जैसे ना कई बार मैं आपको अपने भी, जैसे कई बार मैं क्लाइंट्स का डिस्कशन कर रहा हूँ तो कुछ चीज ऐसी होती है जो मेरे को उनको पहले सीड डालने पड़ते हैं, उनको नहीं समझ में आता पहली बार में बात। अगर मान लो जैसे मैं, जैसे कि 6 मंथ की जर्नी कर रहा हूँ, तो मेरे को जब कोचिंग होती है तो कोचिंग कैसे करी जाती है कि कुछ हमें सीड डालने पड़ते हैं, वो सीड अभी नहीं जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा यार ये क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल का बोल रहे हैं। पर एज अ कोच मुझे पता है 70% मुझे नॉर्मल पे काम करना है, जो प्रेजेंट है उस पर काम करना है, 30% बीज बोने हैं। 30% जब हम बीज बो देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब वो 6 मंथ के बाद ग्रो करते हैं ना, तो फिर बोलते हैं हाँ सर आपने ये बात बोला था, अब मुझे समझ में आई है, हाँ आपने वो चीज बोली थी, वो बोला था। तो हमारा काम क्या है, वो सीड की फॉर्म में डालो। आप ऐसा मत डालो कि आप अपनी कैपेसिटी को दिखाने के लिए आप सीड की फॉर्म में डाल दो कि मैं एक बीज बो रहा हूँ कि मैडम देख लो टेक्निकली हम यहाँ पे अटक सकते हैं, आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट, बट लेटर ऑन इफ यू थिंक सो लेटर ऑन डिस्कस करने के बस खत्म। राइट। तो सीड डालना जरूरी होता है। राइट। आर यू गेटिंग इट? परफेक्ट। यस, गॉट इट। चलो ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने उसकी जो हमारा मॉडल है, ठीक है ना। नेक्स्ट मॉडल जो हम बात करने वाले हैं वो है, जैसे मतलब ये आप जब आप जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये आप ही की बातों का जो भी आप पूछ रहे हो शायद उसी में आपको, इन्हीं मॉडल से आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है। मॉडल 2 इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है क्या? ठीक है। रिगेन कंट्रोल, एक्सपेंड इम्पैक्ट, इग्नोर द नॉइस। अब देख रहे हो, इग्नोर द नॉइस जो आपने बोला ना वही है। अब समझते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या कहता है। थीम क्या है? रिगेनिंग पर्सनल पावर, की अपनी पर्सनल पावर को कैसे रिगेन करें। इनर सर्कल, 3 तरह के सर्कल होते हैं, एक होता है इनर सर्कल, एक होता है मिडिल सर्कल, एक होता है आउटर सर्कल। ठीक है। इनर सर्कल क्या होता है? योर एक्शंस एंड मॉडल्स, आपके एक्शंस क्या हैं और आप किस मॉडल पे, मेंटल मॉडल पे काम करते हो। मिडिल क्या है? इन्फ्लुएंस, कि आपको कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, मिडिल सर्कल। एंड आउटर सर्कल होता है नॉइस और पॉलिटिक्स। ठीक है ना, कि जो बाहर है, जो बाहर चल रहा है, एक आवाज है, एक पॉलिटिक्स है। एग्जाम्पल, क्लाइंट फोकस्ड ऑन वन ऑन वन गॉट रिटेन। ठीक है ना, एक क्लाइंट है जो वन ऑन वन कर रहा है, गॉट रिटेन होता है। तो चलो इसको आगे समझते हैं। सर कॉन्सेप्ट पहले क्या है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या कहता है कि 3 तरह के सर्कल है। ठीक है ना, इसमें 3 तरह के रिंग्स होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं। पहला इनर रिंग होता है कंट्रोल। ठीक है, थॉट्स, वर्ड्स, डायरेक्ट। आपको एक चीज दिखाता हूं इसमें, ये है इमेज। ये देखिए, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, पहला सर्कल है इनर सर्कल, ये आपका इनर सर्कल है। इनर सर्कल के अंदर क्या है? यूर थॉट्स, यूर एक्शन। ये वो चीजें हैं, इनर सर्कल मतलब वो चीज जो आप कंट्रोल कर सकते हो, थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, दिस इज योर इनर सर्कल, फर्स्ट। सेकेंड आता है मिडल सर्कल, जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंस में फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, आपके कलीग्स, आपके टीम मेंबर्स। ठीक है ना, ये वो लोग हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिलीज, इन लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, दे आर योर मिडिल सर्कल। एंड थर्ड सर्कल इज आउटर सर्कल। आउटर सर्कल क्या हो गया? वेदर, इकोनॉमी, अदर पीपल मूड्स, इमोशंस, बॉसेस इमोशंस, आप यू कांट कंट्रोल। पॉलिटिक्स यू कांट कंट्रोल, वो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। थिंग्स यू कांट चेंज, जो आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको हमेशा देखना है मेरे इन्फ्लुएंस सर्कल में क्या क्या आ रहा है, मतलब पहला मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं किसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, और आउटर सर्कल में क्या है। जब हम ये बात करते हैं, इनर सर्कल इज
जब हम बात करते हैं, थिंक ऑफ इट लाइक अ टारगेट बोर्ड। टारगेट बोर्ड का मतलब जैसे कंट्रोल, हाउ यू स्पीक, व्हाट यू थिंक, हाउ हार्ड यू, एग्जांपल, कि अगर मैं स्टडी के एग्जांपल लेता हूं कि आप क्या बोलते हो, आप कैसे सोचते हो, और आप कितना ज्यादा पढ़ सकते हो। इट्स ऑल अबाउट इनर सर्कल। मैं ज्यादा पढ़ सकता हूँ, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, मैं कितनी चीजों को मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। दैट इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है ना। मिडिल सर्कल, मिडिल सर्कल मतलब कि कोई प्रोजेक्ट में आपको दिया गया है, तो आपके यहाँ पे टीचर है, वहां पर बॉसेस आ जाएंगे। ठीक है ना, कि आपके बॉसेस आपके एफर्ट्स को कैसा देखते हैं, आप कितनी अच्छी तरीके से बॉस को कन्विंस कर सकते हो अबाउट योर एफर्ट्स, आपकी टीम का ओवरऑल मूड क्या है, आप आपके कलीग्स को आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये आता है मिडिल सर्कल। और आउटर सर्कल क्या होता है कि कोई भी चीज है, जैसे रेन आ गई, कैंसलिंग स्पोर्ट्स डे, एग्जाम टाइम टेबल चेंज, कुछ ऐसी ऑफिस में क्या हुआ, आपने बहुत ज्यादा मीटिंग की तैयारी कर रखी थी पर बॉस नहीं आए। ठीक है ना, कुछ और चीज हो गई। तो दीज आर द थिंग्स। ठीक है ना। तो लेसन क्या होता है, इसका लेसन ये है कि आपको क्या करना है, स्पेंड मोर टाइम ऑन इनर एंड मिडल सर्कल। यूजुअली कहां पे दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, प्रॉब्लम ये होती है हम लोग ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं आउटर सर्कल पे। पॉलिटिक्स हो रही है, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, वो ऐसा हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, एआई आ रहा है, ये सिचुएशन, कहां पर टाइम जा रहा है, आउटर सर्कल। प्रॉब्लम ये है, हमें देखना है कि हम इनर सर्कल और मिडिल सर्कल को अगर आपने इंटैक्ट रख लिया, अगर आपने इनर सर्कल और आउटर सर्कल को आपने इंटैक्ट कर लिया तो काम हो जाएगा। ठीक है ना। आई एम जस्ट शेयरिंग यू स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, आपको तब कारपेट के हिसाब से बेटर समझ में आएगा। इनर सर्कल है कंट्रोल, थॉट्स, वर्ड्स, डायरेक्ट एक्शंस। मिडिल रिंग हो गया इन्फ्लुएंस, टीम का बिहेवियर, पीयर्स, मैनेजर परसेप्शन। ये मिडिल रिंग है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। आउटर रिंग है नॉइस, इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिस्टेंस ऑफिस, गॉसिप्स। ये नहीं कर सकते आप कंट्रोल।